आपके ख्याल आपकी हकीकत बनाते हैं और असली सोच से कनेक्शन को दिखाते हैं या बिगाड़ते हैं। अपनी सोच को एकता, प्यार और सेवा के साथ जोड़ना सबसे जरूरी है। तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले किसी से रिफ्लेक्शंस हो, किसी के कोई डाउट्स हो, किसी के कोई थॉट्स हो, बोल सकता है। वेलकम पीयूष, कैसे हो? Good evening, Ishan. I'm very well. How are you? अमेजिंग, ग्लैड टू हैव यू। Yeah, I just woke up. क्या बोला? I just woke up. तो तुम्हारी आवाज ब्रेक हो गई। Is it better now? अ बिट, यस। Dead. So I'm using my mother's hotspot. हम्म। ओके, तो अब यहाँ से आगे जो कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करने से पहले आई वुड वांट टू मूव टू द एक्चुअल टेक्स्ट। सो हियर वी आर इन द एक्चुअल टेक्स्ट। तो कोई रीड करना चाहेगा? निखिल, वुड यू वांट टू रीड? हाँ भाई, रीड कर रहा था, एक सेकंड। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेलो। सेशन वन। हाँ। हम्म। Ra. I am Ra. I have not spoken through this instrument before. We had to wait until she was precisely tuned as we send a narrow band vibration. We greet you in the love and in the light of our infinite creator. We have watched your group. We have been called to you, your group, for you have a deed to the diversity of experiences in channeling which go with a more intensive, or as you might call it, advanced approach to the system of studying the patterns of the illusion of your body, your mind, and your spirit, which you call seeking the truth. We hope to offer you a somewhat different slant upon the information which is always and ever the same. हम्म। तो यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है स्टडी की, वो ये रहेगी कि हम एक पॉइंट कवर करेंगे, एक सेक्शन, एंड देन वी विल ब्रेक। एंड वहाँ पे किसी के कोई थॉट्स हैं, रिफ्लेक्शंस हैं, कोई भी बोल सकता है। ठीक है, तो निखिल यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर। Okay, G. The configuration of planets in the service of the infinite creator has only one important statement. The statement, my friends, as you know, is all things, all of life, all of the creation is a part of one original thought. We will exercise each channel if we are able to. The reception of our the receptions of our beam is a somewhat more advanced fit than some of the more broad vibration channels opened by other members for more introductory and intermediate work. Let us for a moment consider thought. What is it, my friends, to take thought took you then thought today? What thoughts did you think today? What thoughts were part of the original thought today? In how many of your thoughts did the creation abide? Was love contained, and was a service freely given? You are not a part of a material universe. You are a part of a thought. You are a dancing in a ballroom in which there is no material. You are a dancing thought.
You move your body, your mind, and your spirit in somewhat eccentric pattern, for you have not completely grasped the concept that you are part of a original thought. We would at this time transfer to a instrument known as a dawn. I am Ra. यहाँ पे रुक जाओ Okay. निखिल, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत हैवी कॉन्सेप्ट बोल दिए रान ने, एंड आई वुड लाइक टू पुट माय रिफ्लेक्शंस. Okay. तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बताया कि कि हम क्यों आए हैं. अब आप लोगों के पास, जो डॉन एंड कार्ला के पास, वो क्यों आए हैं, तो उस चीज के बारे में बताया कि वो उनकी उस अप्रोच से अट्रैक्ट हुए थे, कि जो कि उनका तरीका था, जिस तरीके से वो काम कर रहे थे. तो इनका एक स्टेटमेंट है कि ऑल थिंग्स, ऑल ऑफ द लाइफ, ऑल ऑफ द क्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ वन ओरिजिनल थॉट. ये कन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट की तरफ से स्टेटमेंट इन्होंने रखी थी. एंड फिर इन्होंने कंटेम्पलेशन के लिए वही चीज बोली थी जो कि अभी मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन का बताया था, और यहाँ पे मैं इस चीज को दोबारा मैं रखना चाहूंगा. तो उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हुआ बोलूंगा सबके लिए, ताकि सब लोग एक बारी दोबारा से गौर दे सकें इस चीज पे. व्हाट इज इट माई फ्रेंड टू टेक थॉट. क्या है मेरे दोस्त एक विचार को लेना. तो क्यों देन थॉट टुडे. क्या तुमने कोई आज विचार लिया. व्हाट थॉट्स डिड यू थिंक टुडे. क्या विचार तुमने आज सोचे. व्हाट थॉट्स वर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल थॉट टुडे. कौन से विचार तुम्हारे उस ओरिजिनल थॉट का हिस्सा थे. इन हाउ मेनी ऑफ योर थॉट्स डिड द क्रिएशन अबाइड. उन विचारों में से कितने विचार तुम्हारे उनमें रचना हुई. वॉज लव कंटेंट. क्या उनमें प्यार था. एंड वॉज सर्विस फ्रीली गिवन. और क्या सेवा मुफ्त में दी गई. आप किसी मटेरियल यूनिवर्स का पार्ट नहीं हो. आप एक विचार का पार्ट हो. आप एक बॉल रूम में डांस कर रहे हो सारे के सारे, जहाँ पे कोई मटेरियल नहीं. हम सब डांसिंग थॉट्स हैं. आप अपनी बॉडी मूव करते हो, अपना माइंड और अपनी स्पिरिट कुछ पैटर्न्स के अंदर, जो कि अभी हमको समझ नहीं आया है ये कि क्या पैटर्न्स हैं जिसमें हम ये डांस करते हैं, हम अपने माइंड, अपनी बॉडी, अपनी स्पिरिट का. यू हैव नॉट कंप्लीटली ग्रास्प द कॉन्सेप्ट कि हम एक ओरिजिनल थॉट का हिस्सा हैं, कि हम सब एक ही हैं. द लॉ इज वन. लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ and let it all sink in. निखिल, if you want you can continue. या फिर किसी और को वॉलंटियर करना चाहता है कोई भी, तो एनी टाइम यू कैन वॉलंटियर फॉर रीडिंग. You can start from I am Ra. करूँ read? हाँ, perfect. किधर से? I am Ra से. Okay. I am Ra. We greet you we greet you once more in the love and the light of our infinite creator. We ask that you be patient with us, for we are a difficult channel to receive. However, we may कहाँ से पढ़ रहे हो तुम? we I am again with the instrument. यहाँ से पढ़ना. this instrument. हाँ, ये वाला है. This instrument is resisting our contact. However, we assure her that we are satisfied that contact with the one known as Dawn is not नहीं, इसके ऊपर वाला पैराग्राफ. ये थोड़ा ऊपर. ओके सॉरी, मैं ऊपर गया ना तो इसके लिए. कोई नहीं. ओके. I am again with this instrument. We are close to initiating a contact
contact but are having a difficulty penetrating a certain mental tension and distraction that is a somewhat characteristic of this channel. We will therefore describe the type of vibration which is being sent. The instrument will find us entering the energy field at a slight angle towards the back of the top of the head in a narrow but a strong area of intensity. We are not able to offer any conditioning due to our own transmitting limitations. Therefore, if the instrument can feel this particular effect, he may then speak our thoughts as they come to him. We, we will again attempt this contact I am Ra. This, this instrument is resisting our contact. However, we assure her that we are satisfied that contact with the one known as Dawn is not at this time preferable to that instrument. We will therefore move on to the one known as Leonard. Again, we question the instrument that it is a narrow band communication which is felt as a vibration entering the aura. We will now transfer this contact. I am Ra. I am Ra. We greet you once more in the love and the light of our infinite Creator. We ask that you be a patient with us, for we are a difficult channel to receive. However, we may perhaps add some dimensions to your understanding. At this time, we would be glad to attempt to speak to any subject or question which those entities in the room may have a potential to use in the requesting. ओके, थैंक यू निखिल। तो एक छोटा सा मैं ब्रीफ दूंगा जो कि अभी रीड करा। तो इसमें ज़्यादा कुछ रेलिवेंट नहीं था इन कॉन्ट्रास्ट टू स्पिरिचुअलिटी। हाउएवर इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि कैसे रा को डिफिकल्टी हो रही थी कॉन्टैक्ट बनाने में। तो ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट था एंड फर्स्ट कॉन्टैक्ट के अंदर वो नैरो बैंड कम्युनिकेशन करने में जो डिस्टॉर्शंस आ रही थी, तो उस चीज़ का वहाँ पे वो एक्सपीरियंस बताया सारा इन्होंने। तो उसके अंदर फिर कंटिन्यू हुआ है कॉन्टैक्ट कि किस तरीके से पेनिट्रेट करने की कोशिश करी इन्होंने और उस वाइब्रेशन को कि ऑरा में आती हुई, बट एक टाइम पे स्टेबलाइज हुआ वो कॉन्टैक्ट एंड नाउ इट इज बिगिनिंग द एक्चुअल रा कॉन्टैक्ट। यस सोनिया। मुझे ये पूछना था कि रा ने पहले सर्कल में कांटेक्ट किया था, मतलब जो चैनलिंग सर्कल है वहां पे रा ने पहले कांटेक्ट किया था एंड देन दे टेस्टेड सारे इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने टेस्ट किया, डॉन को, लेनेट को और भी 2-3 लोग थे आई थिंक। एंड फिर बाद में दे डिसाइडेड टू मूव विथ कार्ला और फिर बाद में फिर उसको ट्रांस स्टेट में जाके चैनलिंग। सो इनिशियली उन्होंने सर्कल में कांटेक्ट करने की कोशिश की। यप ओके यप ओके, आई डिडंट नो दैट। यप यहाँ पे लियोनार्ड का भी बात आया कि they we will move on to the Leonard and they were attempting for the narrow band communication and उन्होंने बार बार कोशिश करी। यहाँ पे 2 मिनट का पॉज, यहाँ पे 90 सेकंड्स का पॉज, फिर से 90 सेकंड का पॉज। यस, वी कैन बिगिन फ्रॉम 1.1। किसी और के कोई डाउट्स, क्वेश्चंस या फिर कोई रीड करना चाहता है कोई और, तो एनी टाइम एनीवन कैन वॉलंटियर। वेलकम अमन जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। You can begin, Nikhil. If you have Yes. anytime if you have any hesitancy, you can always let me know. 1.1 question. It seems members of the confederations have a specific purpose. Is this true with you? And if so, what is your purpose? Ra, I am Ra. We communicate now. We too have our place. We are not those of the love or of the light. We are those who are
who are of the law of one. In our vibrations, the polarities are harmonized. The complexities are specified, and paradoxes have their solution. We are one. That is our that is our nature and our purpose. We are old upon your planet and have served with a saying, have a served with a serve with a varying degrees of success in a transmitting the law of one, of unity, of a singleness to your peoples. We have walked here earth. We have seen the faces of your peoples. This is not so with many of the entities of the Confederation. We found it was not efficacious. However, we then felt the great responsibility of staying in the capacity of removing the distortion and powers that had been given to the law of one. We will continue in this until your shall we say cycle is appropriately ended. If not this one, then the next. We are not a part of a time and thus are able to be with you in any of your times. Does this give you enough information from which to extract our purpose, my brother? 1.2 questioner. Yes, it is does. It is does. Thank you. Ra, we appreciate your vibration. Is there another query? Questioner. I have heard to the name of Ra in connection with the Egyptians. Are you connected with that Ra in any way? Ra, I am Ra. Yes, the connections is congruency. May we elucidate? Questioner, please do. What do you not understand? You can pause here, Nikhil. Okay. You can pause here and you can reflect upon the section 1.1. तो यहाँ पे डॉन ने क्वेश्चन करा कि कन्फेडरेशन का क्या कोई मकसद था क्या यहाँ पे आने में, और क्या ये सच है कि आप कोई मकसद है कि, तो आपका क्या मकसद है, मतलब डॉन ने जानने की कोशिश करी कि रा का मकसद क्या है। तो रा ने बताया कि हमारी एक जगह है, वी टू हैव अवर प्लेस। जैसे कि हम थर्ड डेंसिटी में रहते हैं, वैसे ही अलग अलग जो वाइब्रेशंस होती हैं डेंसिटीज की, वो अपने आप में जगह होती है। तो अब रा बोल रहे हैं कि वी आर नॉट ऑफ द लव और द लाइट, तो वी आर नॉट ऑफ द फोर्थ डेंसिटी और वी आर नॉट ऑफ द फिफ्थ डेंसिटी, वी आर ऑफ दोज हु आर ऑफ द लॉ ऑफ वन। हम लॉ ऑफ वन की वाइब्रेशन के हैं। हमारी वाइब्रेशन में पोलैरिटीज हार्मोनाइज हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज सिंप्लीफाई हो जाती हैं, और हर पैराडॉक्स का सॉल्यूशन होता है। बहुत पावरफुल इन्होंने अपना अपना घर का एड्रेस बताया एक तरीके से इन्होंने, कि ये इनके घर का एड्रेस है कि हमारी वाइब्रेशन में, यानी एक लॉ ऑफ वन की वाइब्रेशन में जो पोलैरिटीज होती हैं, पोलैरिटीज यानी आपका अच्छा बुरा, ठंडा गर्म, यहाँ पे माया सच्चाई, हर टाइप की जो पोलैरिटी होती है, गलत सही, सारी पोलैरिटीज हार्मोनाइज हो जाती हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज, जटिल से जटिल कॉम्प्लेक्सिटीज सिंपल हो जाती हैं, और हर पैराडॉक्स का अपना सॉल्यूशन होता है। फिर ये बोलते हैं वी आर वन, हम एक हैं। यही हमारा नेचर है और यही हमारा मकसद है। और ये बहुत ही इंटीग्रेटेड आपकी वाइब्रेशन है, बहुत ही इंटीग्रेटेड वाइब्रेशन है कि एक नेचर भी यही होना कि जो एकता में लिप्त हैं, एकता में रहते हैं, एकता में कर्म करते हैं, और वही मकसद है कि एकता के लिए करते हैं, सारी यूनिटी के लिए करते हैं, और उस वननेस के लिए करते हैं जो करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग एड्रेस है। डेफिनेटली हमको जाने में काफी टाइम लगेगा इस एड्रेस पे। तो वी आर ओल्ड अपॉन योर प्लैनेट एंड हैव सर्व्ड विद वेरियस डिग्रीज। तो ये कहते हैं कि हम आपके प्लैनेट पे पहले भी आ रखे हैं, एंड हमने काफी हद तक सफलतापूर्वक हमने लॉ ऑफ वन को ट्रांसमिट करा है, उस मैसेज को जो कि यूनिटी का है और सिंगलनेस का है, आपके लोगों तक। हमने आपके प्लैनेट पर, अर्थ पर हम चले हैं, हमने आपके लोगों की शक्लें देखी हैं। ये काफी सारे कन्फेडरेशन के लोगों के साथ नहीं है कि कन्फेडरेशन जिनकी चैनलिंग पो हथौन लातवी के साथ चलती है, उनमें से काफियों ने नहीं करा है ऐसा। और
इन्होंने पाया कि ये अच्छा तरीका नहीं था, ये एफिकेशियस नहीं था, ये कारगर नहीं था। हालांकि अब जब ये इन्होंने मदद करी थी पहले के टाइम पे, तो इनको एक अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि उस कैपेसिटी में रहने की, कि वो डिस्टॉर्शंस जो भी थी उनको हटाएं और जो भी लॉ ऑफ वन है उसको दिया जाए। तो इन्होंने बोला कि ये उस चीज में जारी रहेंगे, डिस्टॉर्शंस हटा के लॉ ऑफ वन देने में हमारे प्लेनेट पर, जब तक ये हमारी साइकिल यानी हार्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती। और अगर इस हार्वेस्ट में नहीं होता तो हम अगली हार्वेस्ट तक भी कोशिश करते रहेंगे। हम समय का हिस्सा नहीं है, इसलिए आपके साथ हर समय उपलब्ध है। तो ये इनका पहला मैसेज था, एड्रेस समेत और एक वाइब्रेशन के समेत, एक लॉ ऑफ वन की। किसी के कोई विचार हैं, किसी की कोई रिफ्लेक्शंस हैं, कोई भी कह सकता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Yes. 1.5। 1.5. Question. Could you give me a little more detail about your role with the Egyptians? Ra. I am Ra. The identity of the vibration Ra is our identity. We as a group, or what you would call a social memory complex, made contact with a race of your planetary kind, which you call Egyptian. Others from our density made contact at the same time in the South America and the so-called lost cities, where their attempts to contribute to the law of one. We spoke to a one who heard and understood and was in a position to decree the law of one. However, the priests and the peoples of that era quickly distorted our message, robbing it of the, shall we say, compassion with which unity is informed by its very nature, since it contains all it cannot abhor any. When we were no longer able to have appropriate channels through which to initiate the law of one, we removed ourselves from the now hypothetical position which we had allowed ourselves to be placed in, and other myths, shall we say, other understanding, having more to do with polarity and the things of your vibrational complex again took over in that particular society complex. Does this form a sufficient amount of information, or could we speak further? Question inaudible. Ra, is there another query? 1.7 questioner. Question were lost because of questioners was sitting too far from the tape recorded to be recorded. Ra, I am Ra. Consider if you will that the universe is infinite. This has yet to be proven or disproven. But we can assure you that there is no end to yourself, your understanding, what you would call your journey of seeking, or your perceptions of the creation. That which is infinite cannot be many. For manyness is a finite concept. To have infinite, you must identify or define that infinity as a unity. Otherwise, the term does not have any different or meaning. In an infinite creator, there is only unity. You have seen a simple examples of unity. You have seen the prism which shows all colors streaming from the sunlight. This is simplistic example of unity. In truth, there is no right or wrong. There is no polarity, for all will be, as you would say, reconciled at at some point in your dance through the mind body spirit complex, which you amuse yourself by distorting in various ways at this time.
This distortion is not in any case necessary. It is chosen by each of you as a alternative to understanding the complete unity of a thought which binds all things. You are not speaking of similar or somewhat like entities or things. You are everything, every being, every emotion, every event, every situation. You are unity. You are infinity. You are love, light, love. You are. This is a law of one. May we enunciate this law in more detail? You can pause here. Okay. बहुत वंडरफुल क्वेश्चंस, बहुत वंडरफुल आंसर्स, बहुत हैवी। तो ऐसे अनपैक करते हैं एक एक करके। तो 1.5, यहाँ पे रा ने सवाल करा, डॉन ने सवाल करा रा से उनके इजिप्शियंस के टाइम पे रोल के रिगार्डिंग। तो उन्होंने बताया कि हमारी वाइब्रेशन, हमारी पहचान रा की वाइब्रेशन की है। तो हम एक ग्रुप की तरह, एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हैं, एक ग्रुप सोल यानी। और हमने एक कांटेक्ट बनाया आपके एक रेस को जिसे हम इजिप्शियंस कहते हैं। वहां पे जो कांटेक्ट बना, दूसरे समय पे साउथ अमेरिका में हमारी डेंसिटीज के लोगों ने कांटेक्ट बनाया था, जिसे लॉफ्ट सिटीज के अंदर कहा जाता है। और ये लॉ ऑफ वन के कंट्रीब्यूशन में रहते हैं। एंड हमारा इंटरनेशनल कम्युनिटीज में एक फ्रेंड है, अनिका, अनिका सेवा। एंड उसके साथ मैंने शिकागो लॉ ऑफ वन में काफी सेशंस करे हैं। एंड अनिका के साथ कांटेक्ट हुआ था सिक्स डेंसिटी के उन दूसरे ग्रुप का, जो कि साउथ अमेरिका में जिन्होंने उसी सेम टाइम पे कांटेक्ट करा था जब रा ने इजिप्शियंस के टाइम पे कांटेक्ट करा था। उनका नाम था क्वचलकोट्ल। तो वो वहां पे सरपेंट गॉड के नाम से मशहूर थे। जैसे रा को सन गॉड कहते हैं, तो उन्हें सरपेंट गॉड कहते हैं। तो अनिका ने अराउंड 20 सेशंस चैनल करे उनके रिगार्डिंग द विजडम फ्रॉम द क्वचलकोट्ल। हाउएवर वो ट्रांस चैनलिंग नहीं थी, वो कॉन्शियस चैनलिंग थी। एंड ये लॉ ऑफ वन है, ये काफी नैरो बैंड कॉन्टैक्ट है और काफी ज्यादा प्रिसाइज है द डिस्टिंक्शंस। ओके, perfect, thank you Sonia. You must share it for others. Like it is wonderful, the content is wonderful. And मैंने भी वो सेशंस अटेंड करे थे। आई हैव सीन देम, लाइक चैनलिंग, शुरुआती रिचुअल्स कैसे होते हैं चैनलिंग के टाइम पे, प्रेयर से रिलेटेड करते हुए, देन प्रोटेक्शन से रिलेटेड करते हुए, देन फिर कैसे एक मेडिटेटिव मोड के अंदर फिर वो चैनलिंग शुरू होती है। एंड अनिका के साथ में जब चैनलिंग, जब क्वचल कोटल की शुरू करी थी, उससे भी पहले से रहा हूँ मैं। जब लाइक शी यूज्ड टू डू इंट्यूटिव वर्क विद क्रिस्टल्स एंड टैरेट कार्ड्स, और फिर शी स्टार्टेड डूइंग स्पिरिट गाइड चैनलिंग। उसने मेरी भी स्पिरिट गाइड चैनलिंग करी है, सोनिया की भी करी। And then she had started getting contacts from, inner planes and everything. So her life like totally changed after that, all of that. तो साउथ अमेरिका के जो दूसरे थे डेंसिटी में, उसके ऊपर कुछ कंटेक्स्ट दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे रा ने कहा कि हमने उस पोजीशन पे थे जहाँ पे हमने लॉ ऑफ वन को देने की कोशिश करी, कि जो भी स्पोक टू द वन हु हर्ड एंड अंडरस्टूड, जो भी उस पोजीशन पे था तब के टाइम पे कि जो लॉ ऑफ वन को डिग्री कर सकता था, हमने उनके साथ बात करी और समझाया। लेकिन उधर के जो प्रीस्ट और लोग थे, उन्होंने उस मैसेज को डिस्टॉर्ट कर दिया, उसमें मिलावट कर दी। और उस चीज के एक जो कंपैशन था, उसमें एक प्रेम था, उसमें करुणा थी, कि एक यूनिटी होती है, वो उन्होंने उससे निकाल दी। उसने उसको उनको एक कंट्रोल करने के एक तरीके में बदल दिया सारा का सारा, कि एक रा देवता है, सन गॉड है, इनकी ये इच्छा है, सेक्रीफाइसेस और फिर वो सब चीजें, उनके रिचुअल्स। तो वो सारा मैसेज उनका यूनिटी का डिस्टॉर्ट मार दिया गया, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल एंड उन सब चीजों के लिए। इसीलिए ही इनकी डिसअपॉइंटमेंट थी ऊपर, कि हम हमारा आना हुआ था आपके प्लेनेट पर, लेकिन वो एफिकेशियस नहीं रहा। तो ये इनकी डिसअपॉइंटमेंट रही थी यहाँ पे। तो रा कहते हैं कि यूनिटी, इन्फिनिटी, अगर उसमें सब चीजें हैं तो वो किसी और चीज को नेगेट नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने ये कहा कि जब हमारे पास कोई और चैनल्स नहीं थे, कि हमारे सारे चैनल ही बंद कर दिए, हम शुरुआती में आए, हमने थोड़ा बहुत मैसेज दिया,
एंड फिर वो मैसेज देने के बाद हमारे मैसेज को तोड़ मरोड़ के कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर दिया। एंड फिर हम जब चाह रहे थे हमारी बातें और सुनी जाएं, तब वो सही करने के लिए हमारी बातें सुनना लोगों ने छोड़ दी। चीजें बिगड़ गई। एंड फिर उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए जितना उनका फायदा हो रहा था उतने तक उन्होंने चीजों को सुना और समझा। फिर जब ये चीज होने लगी तो रा ने अपने आप को उधर से रिमूव कर दिया, जो कि एक काफी हिपोक्रिटिकल पोजीशन बन गई थी। और कुछ मिथ्स का ये कहना है कि अदर अंडरस्टैंडिंग्स, जो कि पोलैरिटी और जो वाइब्रेशनल कॉम्प्लेक्स की जो थी अंडरस्टैंडिंग थी, अनदर myth shall we say other understandings having more to do with polarity, यानी सेपरेशन की जो अंडरस्टैंडिंग्स थी, द थिंग्स ऑफ योर वाइब्रेशनल कॉम्प्लेक्स, तो वो सोसाइटी के अंदर घुस गई। यानी पोलैरिटी पोलैरिटी उधर घुस गई, सेपरेशन घुस गई, और सारा जो एक तरीके से मतभेद और सेपरेशन वो घुस गई। एक यूनिटी, अंडरस्टैंडिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपैशन, करुणा, कि यूनिटी के साथ एक करुणा आती है, वो चले गई वहां पे। तो फिर आगे इन्होंने बताया, तो जो इन्होंने बातें रखी वो कुछ ये थी कि आप कंसिडर करें कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड अनंत है। अब किसी को नहीं पता कि वो अनंत है या नहीं है, हमारी साइंस अभी प्रूव करेगी या फिर वो चीज डिस्प्रूव होगी, वो समय बताएगा। लेकिन हम ये चीज अश्योर कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई अंत नहीं है आपके सेल्फ का। आपके सेल्फ अनंत है। आपकी अंडरस्टैंडिंग का कोई लिमिट नहीं है, कोई एंड नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अनंत है। आप जिसे कहते हो अपनी जर्नी ऑफ सीकिंग, आपका सफर, आपकी यात्रा सीकिंग की, इसका कोई अंत नहीं है। आपके परसेप्शंस, रचना के, जो भी रचना हुई है, रचयिता ने जो भी करी है, इसका कोई अंत नहीं है। तो दैट विच इज इन्फिनिट, जो अनंत है, वो मैनी नहीं हो सकता। कि भैया अगर इसका कोई अंत नहीं है तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें हैं अनंत चलते जाएंगी तो ये बहुत सारी हैं। तो बहुत सारी जो चीजें हैं ये फाइनाइट कॉन्सेप्ट है, तो इन्फिनिट मैनी नहीं हो सकता। ये पैराडॉक्स है यहाँ पे। लॉ ऑफ वन पैराडॉक्स को रिकंसाइल करके बनता है। तो एक रिकंसाइलेशन जो एक सिक्स डेंसिटी के वाइब्रेशन पे राने करी है, वो यहाँ पे पेश हो रही है। एंड अगर मैं बात करूं ये पैराडॉक्स की रिकंसाइलेशन हम लोग कर लें, या फिर हमारी धरती पे जो लोग हैं सारे ये लोग कर लें, तो अभी के टाइम पे बहुत सारी सेपरेशंस हैं। अभी के टाइम पे हमारी बहुत सारी जो एक डेवलपमेंट है साइंस में, बायोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में, वो सारी हम बहुत बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि एक मेटाफिजिकल एक अंडरस्टैंडिंग के अंदर हमारी ये चीज हम नहीं समझ पाया, हम प्लानट पे, धरती पे जो लोग हैं, कि मैनीनेस इज अ फाइनाइट कॉन्सेप्ट। तो इन्फिनिटी के लिए आपको ये पहचान करनी पड़ेगी, या फिर आपको इन्फिनिटी को आपको यूनिटी की तरह डिफाइन करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी यूनिटी में ही एग्जिस्ट कर सकती है। अब देखा जाए तो ब्रह्मांड इन्फिनिट है, हमारे जीवन अनंत है, कि हम जन्म मृत्यु का चक्र चलता जाता है, चलता जाता है, कोई एंड नहीं है हमारे सेल्फ का। कि मेरा अभी के टाइम पे ये सेल्फ है, बाद में मेरा कोई और सेल्फ होगा, अगले जन्म में कोई और सेल्फ होगा। अदर सेल्फ मेरे अनंत है, सामने आएंगे जाएंगे चले जाएंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग अनंत है, जितना भी मैं जानूं, जितना भी जानते जाऊंगा उतना कम है, और भी चीजें जानते ही रहूंगा। वो मेरी जर्नी कभी खत्म ही नहीं होनी। रचना जो है हो रखी है रचयिता की, रचयिता को मैं जानता ही जाऊंगा, जानता ही जाऊंगा, कभी नहीं जान पाऊंगा, अनंत है। तो ये मैनी नहीं है, कि ये नहीं है कि ऐसा है, बहुत सारा है, बहुत सारा कभी अनंत नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारा एक लिमिट आ जाती है बहुत सारे में। अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 करोड़, 10 करोड़, वो एक पॉइंट पे आकर रुकेगा, बहुत सारा कितना है। अनंत कभी नहीं रुकता। अनंत सिर्फ और सिर्फ यूनिटी में एग्जिस्ट कर सकता है, कि कोई चीज एक है, वो उसी से ही वो इन्फिनिटी पे जाती है। जीरो एंड इन्फिनिटी, अगर जहाँ जीरो और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर आ गया वो फाइनाइट है। एंड हमारी जो रियलिटी सारी चलती है, सारी की सारी साइंसेज हैं, सारी बायोलॉजी है, सारी टेक्नोलॉजी है, वो जीरो और इन्फिनिटी के बीच में चलती है सारी। कितना पैसा कमा लिया किसी ने, कितनी जायदाद है किसी पे, कितने रिश्ते बना लिए, कितना कुछ कर लिया, क्या कर लिया, तो वो सारा जीरो और इन्फिनिटी के बीच में चल रहा है। अभी बात करी जाए, अगर मैं इसको मेडिटेशन की अंडरस्टैंडिंग से भी लूँ, जब आप मेडिटेशन में जाते हो, शून्य में जाते हो, अपना मन शांत करते हो, तो आपके हाथ में इन्फिनिटी लग जाती है, इंटेलिजेंट इन्फिनिटी लग जाती है। जब आप एक, आपके पास अनंत होता है, सब कुछ अनंत होता है, आप में अपने आप ही एक शांति आ जाती है, अबंडेंस है आपके पास, पैसे की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, जिंदगी शांत चल रही है।
अब अपने आप शून्य पे पहुंच जाते हो। तो ये चीज जो चल रही है अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत फंडामेंटल और बहुत फाउंडेशनल मेटाफिजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि इन्फिनिट मैनी नहीं हो सकता, इन्फिनिटी यूनिटी की तरह एग्जिस्ट करता है। फिर उस चीजों के ऊपर उन्होंने विस्तार करा है, इस मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि सच्चाई में यहाँ पे कोई चीज सही या गलत नहीं होती, क्योंकि अगर कोई चीज इन्फिनिट है तो जीरो और इन्फिनिटी के बीच में पोलैरिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। देयर इज नो पोलैरिटी। जैसा कि हम लोगों को, एज यू वुड से, रिकंसाइल एट दिस पॉइंट थ्रू द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, तो ये हमको एक टाइम पे समझ आ जाएगा, जो कि हमारा डांस चल रहा है, हमारा माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का, जिससे हम अपने आप को अम्यूज करते हैं, अपने आप को हम एंटरटेन करते हैं अलग अलग तरीकों से डिस्टॉर्ट करके, कि ये चीज सही नहीं चल रही है, कैटलिस्ट है आ रहा है, अपने आप को इस तरीके से बदल लूं, अभी के टाइम पे ये चीज सही नहीं चल रही है, अभी के टाइम पे दुनिया को बदल दूं। तो कोई पोलैरिटी जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो देखा जाए तो सारा का सारा ये हम अपने आप को अम्यूज ही कर रहे हैं एक डांस के अंदर, रचयिता के अंदर, रचना के अंदर। ये डिस्टॉर्शन किसी भी तरीके से जरूरी नहीं है, ये हम सब ने अपने अपने लिए चुना है, अपने लिए एक अल्टरनेटिव तरीका, ये अंडरस्टैंड करने का कि एक कंप्लीट यूनिटी ऑफ थॉट्स जो कि सब चीजों को बांधती है, हम इसे कैसे समझ सकते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम सब आए हैं यहाँ पे, देखा जाए तो, कि अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट यूनिटी ऑफ थॉट्स विच बाइंड ऑल थिंग्स। बहुत हैवी कॉन्सेप्ट है, एक और बारी दोबारा रीड करूंगा इसे। इन ट्रुथ देयर इज नो राइट और रॉन्ग, देयर इज नो पोलैरिटी, फॉर ऑल विल बी, एज यू वुड से, रिकंसाइल एट सम पॉइंट इन योर डांस। कोई सही गलत नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है यहाँ पे। एक समय पे हमको ये अपने जो भी डांस चल रहा है, ये हम डांस ही कर रहे हैं, हम सारे, हम डांसिंग विचार हैं, हम सारे के सारे, हम रचयिता के ओरिजिनल थॉट का हम हिस्सा हैं, ओरिजिनल थॉट का हम विचार हैं। और एक समय पे हमको ये एहसास हो जाएगा कि हम जो अपने आप को हम एंटरटेन करते हैं, माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स को अलग अलग तरीके से डिस्टॉर्ट करते हुए, अलग अलग तरीके से जीवन के रास्ते बदलते हुए, चीजें चुनते हुए, तो ये डिस्टॉर्शन किसी भी तरीके से जरूरी नहीं है। ये हम सब ने चुना है, हम ये सारी डिस्टॉर्शन अपने लिए खुद चुनते हैं। कोई भी कैटलिस्ट है, कोई भी तकलीफ है, यहाँ तक कि ये सारा जीवन है, ये हम सब खुद चुनते हैं। ये अंडरस्टैंड करने के लिए द कंप्लीट यूनिटी ऑफ थॉट विच बाइंड्स ऑल थिंग्स, द कंप्लीट यूनिटी ऑफ थॉट्स विच बाइंड्स ऑल थिंग्स, यहाँ पे जो मैनीनेस दिख रही है हम सबको, ये मैनीनेस फाइनाइट है, स- सारा ब्रह्मांड इन्फिनिट है, और वो चीज जो इस इन्फिनिटी को जोड़ती है, वो कंप्लीट यूनिटी ऑफ थॉट्स विच बाइंड्स ऑल थिंग्स, ये समझना है हम यहाँ पे। यू आर नॉट स्पीकिंग ऑफ सिमिलर और समवॉट लाइक एंटिटीज और थिंग्स। हम कुछ किसी की जैसी या फिर किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि आप सब चीज हैं, आप सब जीव हैं, आप सब इमोशंस हैं, आप सब घटना हैं, आप सब सिचुएशंस हैं, आप यूनिटी हैं। यूनिटी यानी एक इन्फिनिटी है आप लव लाइट हैं, आप लाइट लव हैं, आप हैं, आप दृष्टा हैं, आप अनुभव कर रहे हैं, आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप हैं। ये लॉ ऑफ वन है। बहुत हैवी वाइब्रेशन थी, ये बोलूं 1.5 1.7 बहुत हैवी थे। किसी के कोई विचार हैं, किसी के कोई रिफ्लेक्शंस हैं, कोई बोल सकता है। मेरे हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ जी अमन जी, बिल्कुल, मोस्ट वेल। ये तो पूरा ही सार है। मतलब ये जो पहले ये तो पूरा सार हो गया। बहुत जबरदस्त है, मैं ये समझता बहुत हूँ लॉ हैवी ऑन वन वाइब्रेशन है। इन दो उस पे ही समझा दी गई है कि एक अनंत रचयिता क्या चाह रहे हैं। अरे बिल्कुल। अगर ये जो उन्होंने बोला कि भाई जीरो और इनफाइनाइट के बीच में सगुण ब्रह्मांड है, और जीरो का मतलब है निर्गुण, जिसको ये हाँ पता ही नहीं जी, है हाँ कि जी, मैं हाँ क्या जी, हो हाँ जी। सकता हूँ। हम्म।
और कितने सुंदर शब्दों में जो हम कह रहे हैं कि जो इन्होंने कहा कि जो आपको मैनी दिख रहे हैं, आपको सोचने की जरूरत है कि ये हकीकत में यूनिटी है। तो उस पूरी सारी बात ही समझा दी कि आप जो जगत में जी रहे हो, बेसिकली आपको यूनिटी ही देख ढूंढनी है इसके अंदर। किसी भी प्रकार के डिस्टॉर्शन की जरूरत है ही नहीं। हम सब कंप्लीट ही अपनी तो डिस्टॉर्शन खुद ही टॉपिक ही चुनते खत्म कर हैं। दिया बता के। हम सब अपनी डिस्टॉर्शन खुद ही चुनते हैं, यही बोल दिया भैया, चुनना छोड़ दो डिस्टॉर्शन अपनी। एकता में ही जियो, यूनिटी में ही जियो। हम सब अपनी अपनी डिस्टॉर्शन खुद ही चुनते हैं। जो भी ये जीवन चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी अनुभव चल रहा है, सारी डिस्टॉर्शन है सेपरेशन में। हाँ जी सोनिया। मुझे लगता है इस पैराग्राफ को रट्टा मार लेना चाहिए, और किसी ने कभी पूछा ना व्हाट इज लॉ ऑफ वन, ये चिपका देना चाहिए इसी पे, पूरी लॉ ऑफ वन इसी बस बस इसी बस फ्रेज में। बस, मैं तो कह रहा हूँ इतनी आगे आगे तक पढ़ जाते हैं हम, चीजों में घुस जाते हैं, यूएफओलॉजी, एनर्जी रे सेंटर्स, बैलेंसिंग, बहुत 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 वो आगे की चीजें हैं। ये ही मैं कह रहा हूँ, इसे घोट के पी लिया तो मैं बोल रहा हूँ बहुत एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग क्लियर है जीवन में फिर, बहुत मैं फंडामेंटल ईशान जी अंडरस्टैंडिंग। इसमें एक वो बता सकता हूँ भारतीय दर्शन का, इसके अंदर जो इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोला, वो हाँ डिस्कस जी कर सकता जरूर, हूँ उसमें। ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट देखिए करिए एक आपकी क्या कोरिलेट कर रहे हो आप। इसमें एक बहुत ही बड़ा वो है जो पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या मतलब है? जो राह ने समझाया कि जो तुम्हें अपूर्ण दिख रहे हैं, जो तुम्हें जो मैनी दिख रहे हैं, जो तुम्हें डिस्टॉर्शन दिख रही है, ये हकीकत में पूर्ण है। यही क्योंकि जो सूरज अमेरिका में उग रहा है वही भारत में उग रहा है, तो ज्ञान जो है वो बदल नहीं सकता। वो हर धर्म में अगर वो अनंत रचेता का है तो वो बदलेगा नहीं, वो एक रहेगा। तो वो इसी बात को जो राम महाराज ने 3 लाइनों में बताया है, यही चीज को वो सनातन मतलब भारतीय दर्शन में कंप्लीट कर देते हैं कि आपका मकसद क्या है, सबको पूर्णता में देख लेना। और उन्होंने भी यही देखो क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट को कि कहां पर आप डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन माया माया कर रहे हो, ये सब एक अनंत रचेता का है। और एक क्लियर भी करी बात कि कोई डिस्टॉर्शन की जरूरत नहीं थी। मतलब कि अनंत रचेता का कोई भाव नहीं था कि मैं सगुन ब्रह्मांड बनाऊं, लेकिन क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति जागृत हुई कि मैं क्या क्या हो सकता हूं, तो ये अनंत ब्रह्मांड क्रिएट हो गया, जो कि फाइनाइट है, मैनी दिख रहा है लेकिन हकीकत में रूप में इनफाइनाइट है। ये मैं इसको लिंक भारतीय दर्शन से करना चाहता था। और सगुण और निर्गुण के भी दोनों भारतीय दर्शन में है, जिसको हम जीरो कह रहे हैं और इनफाइनाइट कह रहे हैं। जीरो का मतलब है नॉट थॉट, कोई डिस्टॉर्शन नहीं। तो इसका मतलब हुआ निर्गुण, कोई गुण, अभी उसमें कोई गुण नहीं है, कोई पोलैरिटी लगी ही नहीं है। जैसे ही इंटेलिजेंट इनफिनाइट आई, जिसको हम सनातन धर्म में कहते हैं कि इच्छा शक्ति जागृत हुई, पराशक्ति जागृत हुई, उसने उसने लाइट के फॉर्म के अंदर फॉर्म लेना शुरू करा और एक पूरा ब्रह्मांड रच दिया रचेता ने कि मैं क्या क्या हो सकता हूं, मेरी रोशनी क्या क्या बन सकती है। अब वो रोशनी ये जानने की कोशिश कर रही है कि मैं हकीकत में हूं कौन। और वो बस ये समझ ले कि मैं अनंत रचेता का एक बीज हूं और मैं ही अनंत रचेता हूं, तो ये कॉन्सेप्ट यहीं पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, काफी ये सुंदर तरीके से आपने को रिलेट करा अमन जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इसमें इस चीज को जो एक रिफ्रेश मारूं मैं, पैराफ्रेस करूं दोबारा से, तो एक ओरिजिनल थॉट था शुरुआती में, हम सब क्या हैं, हम एक ओरिजिनल थॉट का हिस्सा हैं सारे के सारे। और ये ओरिजिनल थॉट ये सब चीजों को जोड़ के रखता है। हमको नजर आती हैं सब चीजें अलग अलग हैं, मैनी है सब चीजें, मैं अलग हूँ आप अलग हो, सब अनुभव अलग हैं मेरे, चीजें बटी हुई हैं सारी की सारी, हमारी मानसिकताएं बदलती हैं, नजरिए बदलते हैं, और जीवन शैली बदलती है। लेकिन एक ओरिजिनल थॉट का हम जो हिस्सा हैं, एक जो जिससे सब रचना बनी, वो अनंत है, वो ब्रह्मांड अनंत है सारा। एंड उस अनंतता को एक चीज जोड़ती है, वो ओरिजिनल थॉट में यूनिटी है, वो इन सब चीजों को जोड़ती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक अंडरस्टैंडिंग है जो हम सब सीखने आए हैं, वो ये है, चीज को मैं यहाँ पे दोबारा कोट कर देता हूँ, कि अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट यूनिटी ऑफ थॉट विच बाइंड्स ऑल थिंग्स। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटाफिजिकल लेसन है। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जब लेसन हमने सीख लिया, हमारी सिक्स डेंसिटी की वाइब्रेशन हम पहुंच गए हैं उस चीज पे,
ये एक मेटाफिजिकल चैप्टर बोलूंगा, ये पूरा सिलेबस है मेटाफिजिक्स का ये आपका। ये मेटाफिजिक्स आपका सोल साइंस होती है, आत्मा की आपकी साइंस होती है। एंड हम जो लेसन सीखते हैं हमारी सोल में जो सीखते हैं वो हमारी पोलराइजेशन में बनते हैं। एंड हम जैसे जैसे हम उन लेसन्स को सीखते हैं वैसे वैसे हमारी वाइब्रेशन और हमारी पोलैरिटी आगे बढ़ती है। एंड ये एक लेसन है, ये बहुत 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 हैवी लेसन है, बहुत हैवी लेसन है। ये अंडरस्टैंड करना कि एक कंप्लीट यूनिटी ऑफ थॉट की एक रचना हुई है, हम सब एक डांसिंग थॉट्स हैं। लेकिन अगर हम सब डांसिंग थॉट्स हैं, हम मैनी नहीं है, क्योंकि हम एक अनंत, हम अनंत विचारों अनंत हम रचयिता के अंदर है, हम अनंत रचना के अंदर है। और हम सब जो डांसिंग थॉट्स हैं, हम सबको एक चीज जोड़ रही है। वो क्या चीज जोड़ रही है? वो एक यूनिटी ऑफ थॉट है। अब तक हम सब चीजों को, अलग अलग चीजों को समझते हैं, तोड़ मोड़ के समझते हैं। कोई एक चीज को समझ रहे हैं तो हम उसे गहराई में जाने तक हम उसे तोड़ मोड़ के समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार में तोड़ मोड़ की जरूरत ही नहीं है किसी भी तरीके से जाने की। सब चीजें का एक ही परम सत्य है, वो एक ओरिजिनल थॉट, सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ वन। सब चीजें एक है, सब चीजें यूनिटी हैं। तो अभी भी मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज मैं बोल रहा हूँ हम इंसानों की लेवल से काफी 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 ऊपर है। एंड इस चीज को समझने में मैं बोल रहा हूँ काफी समय लगेगा हम इंसानों को। हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं। अब इस चीज को अपने अनुभव में भी उतारना है, फिर हमको अपने जिस तरीके से हम चीजों को देखेंगे फिर उसके थ्रू हमारे एक्शंस में भी उतरेगी। जो कि यहाँ पे इन्होंने बात करी थी, जब इन्होंने मैसेज पहुंचाया था इजिप्शियंस के अंदर, तो वो एक यूनिटी का तो मैसेज पहुंचाया। एंड वो यूनिटी के मैसेज से सबके सब वो प्रीफ्ट थे उधर के, और उन्होंने सब लोगों को भी अपने वश में कर लिया। लेकिन उन्होंने वो कंपैशन छीन लिया जिसके साथ वो मैसेज उन्होंने पहुंचाया था। तो जब हम यूनिटी में चीजों को देखेंगे तो वो एक कंपैशन एक जो निकल के आएगा, एक जो एक्चुअल वाइब्रेशन है, बहुत हाई डेंसिटी की वाइब्रेशन है, वो हमारे अंदर आएगी जब हम इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे। और ऑब्जेक्टिव यही है हमारा स्टडी सेशंस में। किसी के और इससे कुछ तो विचार? इससे एक बात निकल के आई हम्म कि कितना बड़ा मैसेज राह ने बताया इस बारे में कि हम्म भाई मैं तो हम्म देने आया था, देने वालों ने कंपैशन छीन ली। हम्म इसका हम्म, हम्म, हम्म। मतलब कि चैनलिंग के लिए भी अधिकारी होना चाहिए। चैनलिंग जो है वो किसी को भी नहीं कराई जा सकती, उसके लिए वो वैलिड होना चाहिए देने के लिए, नहीं तो वो लालच में उतर जाएगा। अमन जी, इसको मैं अगर आपको इस चीज की मैं अंडरस्टैंडिंग का रिफ्लेक्शन दूं, तो हुआ ये कि अब फॉर एग्जांपल आप मान लो कि यार आपने एक छोटे से बच्चे को आपने वो दिया कि यार तुम जाओ यहाँ पे सब्जी काट दो मेरे लिए। ठीक है, तो आपने उसे चाकू पकड़ाया कि जाओ मेरे लिए सब्जी काट दो, एंड मम्मी को वो रोज देखता सब्जी काटते हुए, उसने बोला कि मेरे को दिखाओ चाकू, मैं सब्जी काटना सीखता हूँ। एंड अब होता क्या है कि उसको पता चलता है यार ये तो खतरनाक चीज है, अब मैं इससे मैं दूसरों को मार कर नुकसान पहुंचा सकता हूँ। बच्चा तो नादान है, अब उसे थोड़ी पता है कि यार ये करना सही है या ये गलत है। वो एक्सपेरिमेंट करता है और फिर वो चाकू किसी को मार देता है, इससे दूसरों को नुकसान हो जाता है। तो मैं इस एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो ये धरतीवासी हैं सारे के सारे, अब ये है तो देखा जाए तो थर्ड डेंसिटी तो बच्चे ही, रा के सामने तो ये बहुत ही बच्चे हैं, हम तो कुछ नहीं है वाइब्रेशन के में, अंडर मैटर में। तब हुआ क्या कि रा का जो एक तरीका था कि उधर जाके ही उन्होंने उस चीज को समझाया। तो ये चीज उन्होंने खुद समझी बाद में जाके कि भैया वो चीज एफिकेशियस नहीं थी। रा का भी ये लेसन था यहाँ पे, एंड वो लेसन था उनका, इसी वजह से आज के टाइम पे ये बोलूं उनका एक कार्मिक बॉन्ड है कि वो यहाँ पे आके सेवा दे रहे हैं और हम सबकी पोलैरिटी और हार्वेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पे इन्फ्लुएंस करा। एंड फ्री विल यहाँ की प्लानट की, फॉर एग्जांपल मैं बहुत एडवांस सिविलाइजेशन हूँ, मैं स्पेसशिप में घूम रहा हूँ, एंड मैं देख रहा हूँ यार एक सिविलाइजेशन बहुत पीछे चल रही है, और मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ पे जंग चल रही है, अब मैं क्यों ना यहाँ पे जाके एक कोई टेक्नोलॉजी दे दूँ यहाँ पे इनका जीवन सुधर जाए। और फिर होगा क्या, मैं अगर मैंने वहां पे जाके कोई टेक्नोलॉजी दे दी तो किसी पावर वाले लोगों के हाथ में आएगी, और फिर वो मैनिपुलेट कर लेंगे लोगों को, और फिर वहां पे चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएंगी। फिर मैं सोचूंगा कि यार ये तो बढ़िया होता है, इन्हें जैसा था वैसे ही छोड़ देता, मैंने क्यों पंगा लिया। वो ही ये सारे के सारे कन्फेडरेशन के सोचते हैं। किसी भी तरीके से इंफ्रिंज करना किसी भी एक थर्ड डेंसिटी प्लैनेट के अंदर, खासकर एक जो प्लैनेट जिसकी एक ट्रेजेक्टरी नेचुरल ग्रोथ में चल रही है, वो कभी भी वैलिड नहीं होता। तभी कन्फेडरेशन का एक ये यहाँ पे एक लॉ होता है, लॉ ऑफ फ्री विल की, जो एक वैल्यू करते हैं सारे के सारे। एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन किसी भी आध्यात्मिक किसी का जो वो है ग्रोथ के अंदर बाधा नहीं बनते। अगर वो इन्फ्रिंज करेंगे तो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर वो इन्फ्रिंज करके उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो वो लॉ ऑफ वन के हिसाब से वो कर्मा घूम के उनके ऊपर ही आएगा
कि उन्होंने किसी के पाथ में बांधा डाली और फिर वो सामने वाले का पाथ वो छोड़ के आधे में चले गए। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में कि रा ने भी सीखा इस लेसन से। एंड लोग तो बच्चे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ, इनको तो बहुत हाई वाइब्रेशन का इनको हथियार मिल गया, लॉ ऑफ वन। अब उस लॉ ऑफ वन की वाइब्रेशन को स्टेबलाइज नहीं कर पाया। जैसे कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर की ताकत आप किसी एक ऐसे देश को दे दो जहाँ पे आपका वो है नहीं, जिन पे क्षमता नहीं है न्यूक्लियर रिएक्टर को चला के पूरा देश चलाने की, फिर वो क्या करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूक्लियर हथियार बना देंगे। तो सेम यहाँ पे इन लोगों ने करा कि वो उस चीज को लोगों को पावर करने की जगह, लोगों में एक वाइब्रेशन से प्रेम और प्रकाश भरने की जगह उन्होंने उस चीज को हथियार बना दिया और उस चीज की वाइब्रेशन कम कर दी। सिक्स डेंसिटी से उन्होंने फोर्थ और फिफ्थ डेंसिटी के कॉन्सेप्ट बना दिए ताकि वो लोगों को कंट्रोल कर सकें। तो ये मेरी इस चीज पे अंडरस्टैंडिंग थी। आपका कुछ विचार इस चीज पे? हाँ जी, जो ये रा ने करा, जैसे इन्होंने एक अपना एक तरीके से एक इनका मेथड है जो हुआ हम्म और उसको प्रैक्टिकल में लाए। ऐसे ही भारतीय दर्शन के अंदर इसका एक मेथड है, हम्म उसको कहते हैं अधिकारी। ठीक है, तो इन्होंने क्या सिस्टम बनाया, क्योंकि सारे के सारे वेद भी श्रोत्रिय हैं, जैसे कार्ला जी ने ये सारे लिखे ऊपर से, ऐसे ही ये सारी लैंग्वेज किसी की दी हुई नहीं है, ये भी अनंत बुद्धिमत्ता से निकाली गई है। तो सारे वेद श्रोत्रिय माने जाते हैं। तो ये जो लैंग्वेज इनको मिली करी, तो उसमें इन्होंने क्या करा, यही प्रॉब्लम्स ये लोग फेस कर रहे थे कि भाई लोग अपना अपना जोड़ देते हैं। एक नियम बनाया गया कि भाई इसके अधिकारी बनाया जाए। अब वो अधिकारी कौन होगा, उसमें नियम लगे कि भाई जिसको संपदा आती हो, जिसमें विवेक जागृत हो, हाँ हाँ जो हाँ हाँ, डिसिप्लिन से डेफिनेटली। डिसिप्लिन हो, यम और नियम फॉलो करता हो, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। अटूट विश्वास हो अनंत रचेता पे, और मोक्ष की इच्छा हो। तो हम्म। उन्होंने ये डिसिप्लिन बनाया। उसमें आया कि दम शम उत्प्रेति चिकित्सा, ये सारे के सारे नियम लगाए गए। जो उस नियम को पूरा करता था उसको वो अधिकारी मान लेते थे, और उस अधिकारी को वो तब करने की इच्छा होती थी, वो चैनलिंग कर पाता था। हम्म। तो इसमें बस एक एक एग्जांपल, मतलब एक वे आउट क्या निकाला गया इसी चीज की चैनलिंग को पूरा करने के लिए, कि जैसे इन्होंने अपना मेथड बताया, तो इन्होंने मेथड ये बनाया कि अब अधिकारी ही लिखेगा, और वो अधिकारी ही कोई अथॉरिटी मिलेगी कि वो इस काम को कर सके। वही 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 चीज, फिर वो वहां पे डिस्टॉर्शन वो इसी वजह से बनी कहीं ना कहीं कि वो चीज उन लोगों के हाथ लग रही थी जो कि बैलेंस नहीं थे, डिसिप्लिन नहीं थे, और जिनकी वाइब्रेशन नहीं थी। और वो हुआ ये ना कि उनका चैनल ही बंद कर दिया। रात तो अपने मैसेज देने आए थे एंड वो उम्मीद कर रहे थे कि लोग सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन वहां पे उन्होंने उस चीज को समझना छोड़ दिया लोगों ने। एंड फिर हुआ ये कि फिर वो सारे के सारे लोग एक डिस्टॉर्शन, जो भी डिस्टॉर्शन जैसे आपने बात करी, जो अनडिसिप्लिन्ड एंटिटीज थे, वो फिर उस मैसेज को डिस्टॉर्ट करते 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 आगे बढ़ाया कि वो चीज फिर वो एक चाइनीज विस्पर करके कहते हैं कि अगर आप एक बात किसी को बोलोगे एंड फिर वो दूसरे कान तक जाती है तो वो बात विकृत हो जाती है। तो वो विकृत पन्ना सारा का सारा इस प्रकार से होगा फिर वो सारा, कि वो सारा वननेस का जो मैसेज था, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स मैसेज है, बहुत एडवांस मैसेज है, बहुत हाई वाइब्रेशन चीज है। और ये चीज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैनलिंग के थ्रू दी जाती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये कन्फेडरेशन सारे के सारे कांटेक्ट बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में दी हुई चीजें का डिस्टॉर्शंस में जाने की संभावना ज्यादा रहती है। और एक मैसेज किसी चैनल जो भी करता है उसके पास उतना ही मैसेज पहुंचता है जितना उसमें क्षमता है समझने की। अभी के टाइम पे अगर कोई भी चैनलिंग करते हैं एलएल रिसर्च में, उनको सिर्फ और सिर्फ उतना मैसेज दिया जाएगा जितना उनकी इमीडिएट कैपेसिटी में है कैटलिस्ट प्रोसेस करने की। उनको इतना मैसेज नहीं पकड़ा दिया जाएगा कि उन्हें पूरी की पूरी सेवन डेंसिटी के कॉन्सेप्ट हाथ में पकड़ा दिए कि उन्हें समझ नहीं आया फिर कुछ भी। एंड ये चीज जो गलती हुई है रा के साथ हुई कि उन्होंने इतने एडवांस एक तरीके से हथियार ही पकड़ा दिया पूरा का पूरा। एंड फिर उनको फिर वो रियलाइज ही नहीं हुआ उनको कि यार ये चीज तो हमने बहुत ही एडवांस वाली चीज पकड़ा दी, एंड फिर यहाँ पे अभी मिसयूज होने लग रहा है। फिर वो इन्होंने फिर रियलाइज हुआ कि यार ये तरीका हमारा इनफेक्टिव था। ये भी रा के भी कैटलिस्ट रहे हैं ऑब्वियसली। आपके कुछ विचार निखिल, कुछ कहना चाहते हो? नहीं। चलो परफेक्ट है, तो आप रीडिंग करोगे आगे? लेट्स कंटिन्यू। परफेक्ट। क्वेश्चनर ऊपर जाए। और 1.8 से ही 1.8। करना होगा। हाँ, 1.8। Ra, is there any query at this time?
Question: Can you say anything about the coming planetary changes? Ra, I am preferred to wait until this instrument had again reached the proper state of depth of singleness or a one pointedness before we spoke. The changes are very trivial. We we do not concern ourselves with the conditions which bring about harvest. 1.10. Another question: Is it possible to create any accelerations of understanding other entities or all efforts by the individual on himself accelerating his understanding? In other words, if an individual tries to act as a catalyst in a general to increase the awareness of a planetary consciousness, is he doing nothing but acting upon himself? Or it is possible? Ra, I am Ra. We shall answer your questions in two parts, both of which are important equally. Firstly, you must understand that the distinction between yourself and other is not visible to us. We do not consider that a separation exists between the consciousness raising effort of the distortion which you project as a personality and the distortion which you project as an other personality. Thus, to learn is the same as to teach unless you are not teaching what you are learning, in which case you have done you they little or no good. This understanding should be ponderated by your mind body spirit complex, as it is distortion which plays a part in your experiences at this nexus. To turn to the second part of our response, may we state our understanding limited through it is the reminder of audio session only purpose of therefore the उस following कमेंट is को a इग्नोर कर दो। lightly edit okay therefore the following is a lightly edited version of the rest of the session. Group individuated consciousness is that a state of a sharing understanding with the other distortions of mind, body, spirit complexes, which are within the evident reach of the mind, body, spirit complex, individual or a group. Thus, we are speaking to you and accepting both or distortions and your own in order to evaluate the laws of creations, more especially the law of one. We are not available to many of our peoples, for this is not an easily understood way of communication or a type of physiology. However, our very being is hopefully a poignant example of both the necessity and the near hopelessness of attempting to teach. Each of those in a group is striving to use, digest, and diversify the information which we are sending this instrument into the channels of the mind body spirit complex without distortion. The few whom you will illuminate by sharing your light are far more than enough reason for the greatest possible efforts. To serve one is to serve all. Therefore, we offer the questions back to your state that indeed it is the only activity worth doing. To learn, teach, or teach, learn. There is nothing else which is of aid in demonstrating the original thought except your very being. And the distortions that come from unexplained, interrelate, or mystery clad being are many. Thus, to attempt to discern and wave your way through as many group, mind, body, spirit distortions as possible among your peoples in the course of the teaching is very good effort to make. We can speak no more voluntarily of your desire to serve. May we speak in any other capacity upon this subject. तो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, काफी हैवी चंक है ये। तो यहाँ पे डॉन ने सवाल करा कि ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं चाहूँ तो दूसरे लोगों के अंदर
मैं इनकी अंडरस्टैंडिंग को मैं बढ़ा सकूं, या फिर क्या सारे एफर्ट्स हैं ऑन इंडिविजुअल ऑन हिमसेल्फ एक्सेलरेटिंग जो किसी और, क्या बाकी सारे एफर्ट्स, क्या अगर क्या ये पॉसिबल है कि मैं किसी और की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकूं, या तो फिर जो भी एफर्ट्स है मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकता हूँ? तो ये सवाल है। तो इन अदर वर्ड्स, कि अगर एक इंडिविजुअल एक कैटलिस्ट बनने की कोशिश करता है प्लानिटरी कॉन्शियसनेस की रफ्तार बढ़ाने में, तो क्या वो कुछ कुछ नहीं कर रहा, किसी कुछ उसका असर होगा, या फिर वो सिर्फ अपने आप के ऊपर काम कर रहा है, या फिर क्या ये पॉसिबल है? तो राह ने दो हिस्सों में जवाब दिया इस चीज का। पहला हिस्सा ये था कि उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमारे अंदर और दूसरों के अंदर उनको कोई फर्क नजर नहीं आता। जैसे कि मैं और आप, उनको उसमें कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। वी डू नॉट कंसिडर दैट सेपरेशन एग्जिस्ट between the consciousness raising efforts of the distortion which you project as a personality and a distortion which you project as the other personality। कि उन्हें, अगर मैं एफर्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं अपनी मैं कॉन्शियसनेस बढ़ा रहा हूँ, अपनी चेतना बढ़ा रहा हूँ, अपना पोलराइज कर रहा हूँ अपने आप को, मैं अपने आप के अंदर काम कर रहा हूँ, तो उसके अंदर और मैं दूसरों की सेवा कर रहा हूँ, दूसरों की पोलैरिटी बढ़ा रहा हूँ, दूसरों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा हूँ, और दूसरों की चेतना बढ़ाने में मैं मदद कर रहा हूँ, तो वो बोल रहे हैं इसमें हमें कोई अंतर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि है तो हम एक ग्रुप कॉन्शियसनेस का ही पार्ट। मैं, आप, हम सारे धरती पे हैं, एंड हम सब एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स, धरती के सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स में हैं। एंड अगर धरती का सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आता है, कोई भी चेतना में विकास होता है, तो क्या होगा? वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मेरा विकास करने में मदद करेगी वो चीज। एंड अगर मैं अपनी चेतना के ऊपर काम करूंगा, मैं अपने आप को इवॉल्व करूंगा, एंड मेरा विकास हो रहा है चेतना के अंदर, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं पूरे के पूरे सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स का विकास करने में मदद करूंगा। अभी फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी लाइफ में पिछले काफी साल अपने ऊपर काम करने पे अभी टाइम दिया, एंड मुझे नहीं पता कि किसी और की मैं सेवा कर रहा हूँ नहीं कर रहा, या फिर मैं सेवा करने लायक भी हूँ या नहीं। लेकिन जिस तरीके से मैं एक्ट करता हूँ, जिस तरीके से एक सबकॉन्शियस इम्पैक्ट पड़ता है मेरी मौजूदगी का, मेरे वजूद का, उससे चीजें बदलती हैं। हर आप सभी के एक वजूद का एक इम्पैक्ट है। आप सब एक काफी इंपॉर्टेंट नोड हो इस रियलिटी में, जो कि इस इंटरकनेक्टेड रियलिटी का पार्ट है। एंड हम सब कहीं ना कहीं क्रिएटर हैं, पूरी टाइमलाइन को बदल रहे हैं अपनी मौजूदगी से। एंड ये एक चीज है कि अगर आप यहाँ अपने ऊपर काम करो या किसी और के ऊपर काम करो, काम कहाँ हो रहा है? एक अपनी धरती की चेतना के ऊपर, एक अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ऊपर। और रा का ये कहना है कि ये चीज एक ही है। तो इनका ये है कहना है कि लर्न करना या टीच करना वो एक ही चीज है, अनलेस आप वो चीज नहीं टीच कर रहे हो जो आप लर्न कर रहे हो। जैसे कि कई बार होता क्या है कि मेरे को यार कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है, कि यार बहुत तगड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि यार एक पर्पस ऑफ लाइफ कुछ ऐसा होना चाहिए कि यार कुछ इस तरीके से जिंदगी जिया जाए तो ज्यादा बढ़िया। तो मेरे को ये चीज इतनी पसंद आती है कि यार मैं सिर्फ और सिर्फ उस विचार का प्रचार कर रहा हूँ, एंड फिर वो मैं उस विचार का प्रचार दूसरों के लिए कर रहा हूँ, ताकि दूसरे भी उस विचार पे चल सकें। क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा यार उस दो चीज करके, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार दूसरों की मदद करके, या फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि दूसरों से मतलब ना करके, क्योंकि भी दूसरे छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे मतलब ही होते हैं, क्या दूसरों की करना, सब छोड़ो, अपने अपने से मतलब रखो। कोई भी एक धारणा मैंने पकड़ ली, एंड मैं उस धारणा का प्रचार कर रहा हूँ, मैं उस धारणा की से दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी सीखी, और उस धारणा सीखते ही यार मेरे को चीजें मेरी लाइफ में सही होने लगी, या फिर मेरे को कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा, तो मेरे को कहीं ना कहीं फायदा होने लगा। अब होता क्या है कि हर किसी का बैलेंस अलग होता है। ये हो सकता है कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज जो बैलेंस की है जो कि मेरे अंदर नहीं है, और फिर ये हो सकता है कि मेरे में कोई ऐसी बैलेंस की चीज है जो आपके अंदर नहीं है। एंड उस तरीके से अगर मैं चीज जो आपके अंदर ऑलरेडी बैलेंस्ड है चीज, और मैं अगर वो चीज मैं आपको वो भी दिए जा रहा हूँ, तो वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। एक एक्चुअल एक नेचुरल ग्रोथ इसलिए यहाँ पे बोला जाता है, लॉ ऑफ फ्री विल इसलिए बोला जाता है कि जो सामने वाले को जरूरत है वो ही सामने वाले को दी जाए, या फिर जो सामने वाले की इमीडिएट आपको जरूरत में चीज लग रही है वो चीज दी जाए। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि
इससे जो एक डायरेक्शन है ग्रोथ की वो एक बनी रहती है। अगर सामने वाले की डायरेक्शन ग्रोथ की कुछ और है और मैं उसको कुछ और ही प्रदान कर रहा हूँ तो वो एक एंट्रोपी क्रिएट करता है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये चीज या तो आपको फायदा बिल्कुल नहीं करेगी या सामने वाले को कुछ भी लिटिल या नो गुड करेगी। इसलिए लर्न करना टीच करने के बराबर है या टीच करना लर्न करने के बराबर है अनलेस यू आर नॉट टीचिंग व्हाट यू आर लर्निंग। तो ये अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉन्डर करना काफी जरूरी है, क्योंकि एक डिस्टॉर्शन है जो कि हमारे एक्सपीरियंस में काफी आती है। मैं बात कर रहा हूँ हर किसी के डिस्टॉर्शन में आएगी ये चीज, हर किसी के डिस्टॉर्शन में आती है, खासकर हमारी इंडिया जैसी कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में होते हुए, जो कि एक हमारे में कलेक्टिविज्म में होते हुए ये काफी मानसिकता है कि हम एक दूसरे की हम मदद करें, गाइड करें, सपोर्ट करें और काफी एक स्ट्रांग लेवल पे एक ग्रुप कॉन्शियसनेस बन के रहें। ये कलेक्टिविस्ट हमारी इंडियन कॉन्शियसनेस का होते हुए काफी स्ट्रांग अपना एक टेंडेंसी है। हाउएवर सामने वाले को एक लेसन इस प्रकार में देना कि उसका एक स्पिरिचुअल पाथ जिस दिशा में जा रहा है वो उस दिशा के हिसाब से अप्रोप्रिएट हो, ये बहुत जरूरी चीज है। जो सामने वाले के लिए स्पिरिचुअल पाथ के लिए जरूरी नहीं है वो चीज अगर आप दे रहे हो तो उसका भी फायदा नहीं है, एंड प्लस आपको भी कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। अगर सामने वाले का कोई स्पिरिचुअल पाथ है वो उसको वहां पे जरूरत पड़ रही है एंड वहां पे आप उसकी मदद कर रहे हो तो आपको भी कुछ सीखने को मिल रहा है कि आप उसको वो जैसा है आप उसकी वहां पे मदद कर रहे हो। एंड वहां पे होता ये है कि आप वो जो जैसा है आप उसकी वहां पे मदद कर रहे हो, उससे आपको रचयिता को भी जानने का मौका मिलता है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो आपको चीज सही लग रही है आप वो बता रहे हो तो आप कुछ नया नहीं जान रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपना ही कोड डुप्लीकेट कर रहे हो। जैसे एक वायरस फैलता है वो अपने आप को जेनेटिक म्यूटेट करके सेम मल्टीप्लाई कर लेता है और कुछ उसमें खास बदलाव नहीं आता, सेम वो जेनेटिक कॉपी होता रहता है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट से ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ होती है जब आप नया रचयिता को अनुभव करते हो, रचयिता एज अपने आप को अनुभव करते हो कोई चीज नहीं सीख के, या फिर आप किसी और को वो चीज सिखाते हो रचयिता को जो कि उसको उस पॉइंट पे जरूरत है, तो आप उस रचयिता को भी जान पाते हो और फिर आप उस पॉइंट पे आप उसकी मदद भी कर पाते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टॉर्शन है लर्निंग और टीचिंग को लेते हुए, जो कि मैंने सोचा कि इस चीज के ऊपर थोड़ा एक डीप में मैं थोड़ा डाइव करूँ। तो यहाँ पे एक सेकंड पार्ट को जो इन्होंने इलेबोरेट करा कि टू टर्न टू द सेकंड पार्ट ऑफ अवर रिस्पॉन्स, तो उन्होंने वो एक अंडरस्टैंडिंग बताई और वो बोल रहे हैं कि वो लिमिटेड है। इनकी अपनी खुद अंडरस्टैंडिंग वो बोल रहे हैं कि वो लिमिटेड लिमिटेड दो इट इज, कि group individuated consciousness is a state of sharing understanding with the other distortions of mind body complex that are evident each within the group। यानी एक ग्रुप कॉन्शियसनेस ये होती है कि हम सब अभी के टाइम पे हम कनेक्टेड हैं, यहाँ पे मैं वार्तालाप कर रहा हूँ एंड आप सब इन चीजों को सुन रहे हो, तो एक ग्रुप कॉन्शियसनेस हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक स्टेट ऑफ शेयरिंग होती है कि यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग दूसरे माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स डिस्टॉर्शंस तक पहुंचती है जो कि एविडेंट रीच में है या फिर जो सामने मेरे एकदम प्रस्तुत हैं। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि जो भी वो वी आर स्पीकिंग टू यू एंड एक्सेप्टिंग बोथ द डिस्टॉर्शंस एंड योर ओन इन ऑर्डर टू एनुंशिएट द लॉ ऑफ क्रिएशन, मोर स्पेशली द लॉ ऑफ वन। तो वो ये बात कर रहे हैं कि एक किसी भी वार्तालाप के अंदर वो अपनी भी डिस्टॉर्शन को स्वीकार कर रहे हैं एंड सामने वाले की भी डिस्टॉर्शन को स्वीकार कर रहे हैं। वी आर नॉट अवेलेबल टू मैनी ऑफ योर पीपल और दिस इज नॉट एन इजीली अंडरस्टूड वे ऑफ कम्युनिकेशन और फिलोसफी। हम काफी सारे लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होते क्योंकि ये काफी ज्यादा मुश्किल टाइप की फिलोसफी होती है। हाउएवर अवर बीइंग इज होपफुली पॉइजन एग्जांपल ऑफ बोथ द नेसेसिटी एंड नियर होपलेसनेस। तो ये कह रहे हैं कि हम काफी होपफुल होके चलते हैं कि हम इस चीज की जरूरत भी समझते हैं कि लॉ ऑफ वन पहुंचनी चाहिए एंड साथ में हम एक होपलेसनेस में भी हैं कि यार हम कोशिश तो करते आए हैं इस प्लेनेट पर मैसेज पहुंचाने की लेकिन कुछ खास हमें फर्क नहीं दिख पा रहा, होपलेसनेस में रहे हैं क्योंकि इनके काफी सारे एफर्ट्स वेस्ट गए, काफी सारी इन्होंने एंट्रोपी एक्सपीरियंस करी, इनके खुद के कैटलिस्ट रहे सेवा के अंदर। तो फिर भी ये होपफुल है, ये इनका यहाँ पे कहना था। ईच ऑफ दोस इन दिस ग्रुप इज स्ट्राइविंग टू यूज, digest and diversify the information which we are sending this instrument into the channels of the mind body spirit complex without distortion। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जिस भी ग्रुप को ये मैसेज दे रहे हैं वहाँ पे चैनलिंग में, तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि इनकी सारी बातों को बिना डिस्टॉर्शन के लेने की।
The few whom you will illuminate by sharing your light are far more than enough reason for the greatest possible effort. तो ये कह रहे हैं, अगर अगर कुछ के पास भी ये मैसेज चला जाता है, कि आप में से अगर किसी के पास भी ये एक मैसेज, ये एक रोशनी चले जाती है, तो एक बहुत बड़ा रीजन है ये कि हमारा एफर्ट कार कर रहा है। क्योंकि एक को सेवा दे दी तो सबको सेवा दे दी। अगर मेरे को सेवा मिल गई एंड मैं पोलराइज हो गया, तो मेरी पोलैरिटी फिर मेरे जन्मों जन्मों तक मेरे साथ रहेगी, एंड जन्मों जन्मों तक जब तक मैं इस प्लानट पर सेवा करूंगा, मेरी ये पोलैरिटी यहाँ पे मैंने इस जन्म में जो लॉ ऑफ वन लेके पाई है, वो सभी को आने वाले जन्मों तक मदद करेगी। ये इनका कहने का मतलब था यहाँ पर, टू सर्व वन इज टू सर्व ऑल। क्योंकि ग्रुप कॉन्शियसनेस एक ही है, ग्रुप तो चेतना एक ही है। वाइब्रेशन अगर एक की भी बढ़ गई तो सबकी वाइब्रेशन बढ़ना नियत है। Therefore, we offer the question back to you to state that indeed it is the only activity worth doing। कि ये इकलौती कर्म ये करना, यही करना है। कर्म योग की बात आ रही है यहाँ पे अब, कि इकलौती यही चीज करना वर्थ डूइंग है। टू लर्न टीच एंड टू टीच लर्न, यानी चीजें सीखना और फिर अदर सेल्फ से सीखना, खुद सीखना और अदर सेल्फ के द्वारा सीखना, और सिखाना और अदर सेल्फ के द्वारा लर्न करना। तो यही एक इकलौता यहाँ पे जो ऑब्लिक है, लर्न टीच और टीच लर्न में, यहाँ पे सेल्फ और अदर सेल्फ की पोलैरिटी के साथ ये साथ में इनकॉर्पोरेट करके बोलते हैं। तो सेल्फ लर्न, अदर सेल्फ टीच, सेल्फ टीच, अदर सेल्फ लर्न। तो लर्न टीच या टीच लर्न, सिर्फ और सिर्फ यही एक्टिविटी वर्थ डूइंग है। कि मेरे को कोई कैटलिस्ट आ रहे हैं, मैं अदर सेल्फ के द्वारा मिल रहे हैं, डायरेक्टली मिल रहे हैं कैटलिस्ट, किसी भी सर्विस टू अदर्स एंटिटी, जैसे कि मैं यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ, यहाँ पे सिखा रहा हूँ, लर्न करना है, ये भी एक कैटलिस्ट है। और सर्विस टू सेल्फ एंटिटी द्वारा मिल रहे हैं, डायरेक्टली मिल रहे हैं, आपके साथ बुरा कर रहा है, तो वो भी लर्न टीच हुआ आपके लिए। एंड टीच लर्न इसका उल्टा हो गया, कि आप सिखा रहे हो सामने वाले के लिए, एंड उसमें आपकी अपनी पोलैरिटी के झुकाव हैं। या तो आप इस चीज को सर्विस टू सेल्फ के तरीके से सिखा सकते हो, या तो सर्विस टू अदर्स के तरीके से सिखा सकते हो। इकलौता चीज यही है यहाँ पे। देयर इज नथिंग एल्स विच इज ऑफ एड इन डेमोन्स्ट्रेटिंग द वन ओरिजिनल थॉट एक्सेप्ट योर वेरी ओन बीइंग। यहाँ पे और कुछ नहीं है जो कि वन ओरिजिनल थॉट को डेमोन्स्ट्रेट करने में मदद कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपका अपना बीइंग, जो कि आप हो। आप अपने आप में वन ओरिजिनल थॉट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है लॉ ऑफ वन को गाने की, कहीं या किसी को ज्ञान देने की, किसी को जबरदस्ती सिखाने की जो कि वो चीज नहीं सीखना चाह रहे, या फिर जो वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो हो, आपको वो बन के रहो, ओरिजिनल रहो, ओरिजिनल थॉट की तरह। और जो भी डिस्टॉर्शंस आती हैं, अनएक्सप्लेन्ड, इनआर्टिकुलेट या मिस्ट्री क्लैड, वो काफी रहे। Thus, to attempt to discern and weave your way through as many group mind, body, spirit distortion as possible among your people, in the course of your teaching, it's a very good effort to make। इसलिए अपना रास्ता बनाते हुए जितनी मर्जी आप माइंड बॉडी स्पिरिट डिस्टॉर्शंस को आप टीचिंग कर सकते हो, वो एक काफी गुड एफर्ट रहेगा। वी कैन स्पीक नो मोर वैलियंटली ऑफ योर डिजायर टू सर्व। ये कह रहे हैं कि आपकी हम इच्छा जानते हैं, आप कितनी सेवा करना चाहते हैं। किसी के कोई विचार, कोई डाउट्स, कुछ रिफ्लेक्शंस? इसमें जो इन्होंने बोला लर्न टीच टीच लर्न, तो बड़ा एक मुख्य पॉइंट उन्होंने ये बताया, देखो कि क्योंकि जिसको आप उसने डॉन ने क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर जो मैं सेवा देना चाहता हूँ, जिसको भी देना चाहता हूँ, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा था। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें वो अलग दिखता है, मुझे तो अलग दिखता नहीं है, क्योंकि हम तो यूनिफाइड कॉन्शियसनेस को एक मानते हैं। तो किसको तुमने सिखाओगे, वो तो तुम ही हो। तो टीच लर्न का क्या मतलब हुआ, जब मैंने उसको समझाया तो सीखने वाला भी तो मेरा ही सेल्फ था, मेरा ही तो अंग था। तो वो टीच लर्न, और अगर वो लर्न हुआ और टीच हुआ तो वो रेट्रोरिस्पेक्टिव हो गया, मतलब आपस में इंटीग्रेटेड हो गया। टीच लर्न, लर्न टीच, क्योंकि जिसको आप समझा रहे हो वो भी तो रचेता ही है और आप भी रचेता हो। तो रचेता रचेता को कैसे समझाता है? तो अगर आपने ये समझा भी दिया तो समझ लो आपने उसको टीच करा और लर्न आपने ही करा।
एक ये भाव आया मन के अंदर इसको पढ़ के बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। ये कि मैं बात उन्होंने करूं, उसमें आपका भी एक सारा सेंस कर्म दे योग यहाँ दिया। पे दे रखा है। हाँ ये पूरा कर्म योग ये 2 शब्दों में दे रखा है इन्होंने, सारा का सारा। यहाँ हाँ। पे मैं इस चीज को भी यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। हम्म, सारा कर्म योग इन्होंने इस लाइन में दे रखा है। देयरफॉर वी ऑफर द क्वेश्चन, और इन्होंने इस लाइन के अंदर सर्विस टू सेल्फ और सर्विस टू अदर्स पोलैरिटी भी इंटीग्रेटेड बोली है। एंड इनके सारे के सारे कभी ये भेदभाव नहीं करते। इन्होंने खुद बोला है कि आपकी चॉइस है, कोई भी पोलैरिटी चुनना चाहो आप चुन सकते हैं। एंड इसके अंदर टीच लर्न और लर्न टीच किसी भी पोलैरिटी से करो, आपका सवाल वही है। आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो, अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हो। और होगा क्या कि यार एक टाइम पे मैं विज्ञ वो बन जाऊंगा, इंटेलिजेंट बन जाऊंगा, सुपर इंटेलिजेंट बन जाऊंगा। कहाँ जाएगी इंटेलिजेंस? कहीं ना कहीं तो बहेगी, दूसरों के अंदर जाएगी, दूसरे समझेंगे कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ये आपका, मैं बोल रहा हूँ, विकास हो जाता है। अभी के टाइम पे हमको लग रहा है कि यार एक डिस्टॉर्शंस हैं, सेपरेशंस हैं, चीजें अलग अलग जा रही हैं। जब चेतना ही एक है, जब ओरिजिनल थॉट ही एक है, तो जितने भी विभाजन हो जाए, अगर चीजें आगे जा रही हैं तो फिर वो आगे जा ही रही हैं। जोड़ घटाव मार के जो बैलेंस बनेगा, जितनी भी एंट्रोपी हो रही है, उसके बाद घटा के जो एक बैलेंस बनेगा वो आपका पॉजिटिव ही जाएगा, नेट में पॉजिटिव ही होगा। तो इकलौती एक्टिविटी करना सिर्फ और सिर्फ यही है कि लर्न टीच करना और टीच लर्न करना। ये पूरा का कर्म योग है इसमें, कि लर्न टीच और टीच लर्न, इट इज द ओनली एक्टिविटी वर्थ डूइंग। जीवन में कुछ भी कर रहे हो, सीखो और सिखाओ। ईशान जी, एक 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 इसमें एग्जांपल से मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता था। अभी एक दो दिन पहले मीटिंग के अंदर ये क्वेश्चन उठा था, ठीक है? हम्म। तो बस आप मुझे ये वैलिडेट करिएगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है? बिल्कुल। इसी एग्जांपल से मैं उसी चीज को रोशनी डालना चाहता हूँ। भाई, मैंने क्वेश्चन पूछा कि एक जना रोड पे चल रहा है टेलीफोन पकड़ के, और उसने गड्ढे हम्म। में, गड्ढा है उसके आगे, हाँ ठीक जी। है? तो क्या, और हम देख रहे हैं कि वो गड्ढे में गिरने वाला है। हम्म। तो इसका मतलब जो अभी हमने ये पढ़ा पैराग्राफ, इसका हम्म। मतलब ये हुआ। तो क्वेश्चन था कि क्या मुझे उसको रोकना चाहिए या नहीं चाहिए, कि भैया आगे गड्ढा है, जरा समझ जा। हम्म। तो अब इससे मैं ये समझा, क्योंकि वो मैं ही हूं गड्ढे में गिरने वाला, हम्म। और हम दोनों में फर्क नहीं है, तो मुझे अपनी सुरक्षा के लिए उसको रोकना चाहिए। हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को उसमें और अपने में कोई भाव भेद नहीं करना चाहिए। जो चीज मैं अपने साथ करता, वो मैं उसके लिए कर रहा हूँ। हम्म। तो क्या ये बात सही है कि हमें उसको रोकना चाहिए, वो एक पोलराइजेशन की तरफ भाव जाएगा, या हम ये कहेंगे क्योंकि उसने नहीं मांगा बोलने के लिए तो हम उसको नहीं पूछेंगे? अवन जी, यहाँ पे मैं इस चीज पर रिफ्लेक्ट करूँ तो कॉम्प्लेक्सिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन पे, आपकी क्या स्थिति है एंड सामने वाले की क्या स्थिति है। अगर ये दिख रहा है कि सामने वाले की स्थिति में अंदर कि अगर मैं उसकी सेवा करूंगा एंड उसके अंदर कोई एक मतलब गड्ढा, या तो गड्ढा कितना बड़ा है, सबसे पहली बात, गड्ढा छोटा है तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए लेसन हो सकता है कि वो खुद सीख के समझ सकता है। अगर गड्ढा बड़ा है एंड उसको चोट लग गई है एंड उसमें कोई बचाने के लिए है ही नहीं उसको, एंड वहां पे अगर मेरी हालत सही है कि यार मैं अपना जो 49% और 51% का अगर मैं बैलेंस को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं उस चीज पे जाऊं कि अगर मैं सेवा कर रहा हूँ एंड मैं सेवा कर सकता हूँ, हाँ मेरे को सेवा करनी चाहिए करुणा के साथ अदर सेल्फ को मैं देखते हुए, तो मैं उस पॉइंट पे जाऊंगा एंड उसकी अदर सेल्फ की अपनी मदद करूंगा, क्योंकि मेरा और उसमें कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन अगर मैं अपाहिज हूँ, मैं व्हील चेयर पे बैठा हूँ एंड सामने वाले को देख रहा हूँ यार ये गिर गया, एंड फिर मैं अपनी व्हील चेयर दौड़ाते हुए जा रहा हूँ, पता चल रहा है मैं भी गिर गया साथ में, तो वो भी एक इम्बैलेंस आ जाएगा उसमें। तो सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपका जो एक भाव है सेवा का, वो एक अंडरस्टैंडिंग जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे और उसमें कोई अंतर नहीं है, वो मेरा ही अंग है। एंड अपना अगर मेरा अंग जैसे कि कटता है, कोई चोट लगती है, उसी प्रकार से एक अदर सेल्फ को लेते हुए एक भाव होना जरूरी है कि यार ये मैं ही हूँ, एंड इसके लिए करुणा होना, इसके लिए यूनिटी होना, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग होना। ये सारा कन्फेडरेशन का ही मोटिव यही है। अगर मान लो ये नहीं होता तो आज के टाइम पे कन्फेडरेशन को क्या पड़ी थी, हम सबको स्पिरिचुअल ज्ञान देने की, हम सबको कोई भी चीज गलत होती है, न्यूक्लियर बम फटते हैं तो यहाँ पे कन्फेडरेशन या फिर और भी पॉजिटिव एंटिटी सपोर्ट करने आते हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर ना हो जाए या फिर कोई चीज ना हो जाए। तो इनको नहीं फर्क पड़ता तो कोई क्या ही करता, तबाह करे मरे सारे जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो कहीं ना कहीं कंसर्न है, क्योंकि सब एक समझते हैं एक दूसरे को, कंपैशन।
तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंपैशन, और जो कि अभी ऊपर समझा कि रा के मैसेज को डिस्टॉर्ट ही कर दिया था यहाँ पे, क्यों? क्योंकि कंपैशन ही निकाल दिया था यूनिटी की अंडरस्टैंडिंग से। कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिना करुणा के तो लॉ ऑफ वन वन है ही नहीं। मीन्स कंपैशन इंक्लूड्स फॉरगिवनेस ना? कंपैशन इंक्लूड फॉरगिवनेस, कंपैशन इंक्लूड सर्विस, कंपैशन इंक्लूड लव। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज मेरी चेतना में नहीं है, मेरी चेतना का इमीडिएट में हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारी अभी जो टाइम पे अनुभव चल रहा है अपना, चेतना के अंदर जो अनुभव चल रहा है, अभी बहुत छोटा सा अनुभव चल रहा है। एक ब्रह्मांड का, एक मैं बोल रहा हूँ तिनका भर है, जो कि मैं जो भी फोकल पॉइंट है यूनिवर्स का, वो अनुभव कर रहा हूँ। एंड बहुत सारी चीजें मेरी नजर में नहीं है, एंड जो चीजें मेरी नजर में नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर मेरी नजर में कोई चीज आ रही है, एंड उस चीज को होते हुए उस इंसाफ के नजरिए से देखा जाए, जस्टिस के नजरिए से देखा जाए, एक मैस्कुलिन एनर्जी आती है जस्टिस की। जस्टिस के नजरिए से मेरे बस में है कि यार मैं इंसाफ दिला सकता हूँ, मैं उस पॉइंट पे वो चीज सही कर सकता हूँ, उस पॉइंट पे मैं वो हीलिंग कर सकता हूँ। जो कि चीज लोग दर्द में है, मेरा अदर सेल्फ जो दर्द में है, उस पॉइंट पे मैं हीलिंग करता हूँ। तो मैं किसी और कोनी में, अब सेल्फ और अदर सेल्फ में कोई अंतर नहीं है, मैं अपने आप को हीलिंग कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो चीज घूम के जो कहते हैं ना पुण्य कमता है, वो सब चीजें होती हैं, तो अपने आप को हीलिंग कर रहा हूँ। अदर सेल्फ और सेल्फ में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर वही चीज मैं इग्नोर कर दी, तो मेरी कंसाइंस में क्या जाएगा, मेरी चेतना के अंदर क्या जाएगा कि ये चीज ओके है। किसी को दर्द में देखो और उस चीज को इग्नोर कर दो, ये ओके है। एंड ये चीज क्या होती है? ग्रीन रे बंद होना। ये चीज ग्रीन रे बंद होने का एग्जाम्पल है, सिंपल सिंपल। अगली बारी कोई मेरे सामने दुखी होगा, दर्द में होगा, क्या पता मैंने ही उस पर्सन को दुखी कर रहा हूं, मैं इग्नोर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि भैया मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, सेंसिटिविटी ऑफ कर दी है मैंने, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया वहां पे। पूरे इम्बैलेंस किस रास्ते पे कहाँ तक जाएगा, आपको कौन सा कैटलिस्ट पर कहाँ पे दिलवा देगा, आपको खुद नहीं पता चलेगी। तो ये एक इम्बैलेंस है देखा जाए तो। बस एक छोटा सा क्वेश्चन और था, मैं पूछूं? मतलब टाइम क्योंकि हो गया है। टाइम हो गया ऑब्वियसली, पूछिए, अब क्लोज अप कर रहे हैं। एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन मेरे हम्म, मतलब मुझे पूछना था। जो वन ओरिजिनल थॉट क्रिएटर को आया, हम्म, ठीक है, तो जब उनको थॉट आया कि मैं क्या हो सकता हूं, और मैनिफेस्टेशन शुरू हुई, तो जो हम्म। सबसे पहला मैनिफेस्ट हुआ वो लाइट और साउंड हुई, या वो मैनिफेस्टेशन जो हुई वो मतलब सिर्फ लाइट साउंड से शुरू हुआ, या ये भी भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके की हुई? जो पहली मैनिफेस्टेशन हुई, आपकी पहली मैनिफेस्टेशन, तो मैं बोल रहा हूँ अभी काफी आगे का सेशन है, आपने सेशन से अगेंस्ट पूछ रहे हो। हालांकि मैं अपना अगर पर्सपेक्टिव दूं उस चीज के ऊपर, तो पहली मैनिफेस्टेशन जो हुई वो आपका इंटेलिजेंट इन्फिनिटी की हुई। सबसे पहले ये जो मैनिफेस्टेशन हुई, वो रचयिता जो अनंत है, जो निर्गुण है, वो निर्गुण अपने आप को लेते हुए अवेयर हुआ, सेल्फ अवेयरनेस आई। एंड वो सेल्फ अवेयरनेस के बाद जादू होना शुरू हुआ रचना में। तो अभी के लिए इतना ही, और बाकी आपके साथ मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। कभी आप मैसेज ड्रॉप करना, कंटिन्यू कर देंगे इस कन्वर्सेशन को। इसका जवाब यस मैं सोनिया। थैंक यू। दूं ईशान? थैंक यू। हाँ सोनिया, बिल्कुल जरूर। सो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी पहले से ही थी। ठीक है, इन्फिनिटी बोल लो, अनंत रचयिता बोल लो, है ना, वो पहले से ही थी। लेकिन वो उस स्टेट में थी जहाँ पे कोई विभाजन नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है ना, यूनिटी में थी वो पूरी तरह से। उसमें ना कोई पोटेंशियल था, कुछ भी नहीं था। फिर जब वो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी अपने आप को लेके जागरूक हुई, अवेयरनेस उसके अंदर जब आया, तब उसके अंदर एक इच्छा जागी, मुझे अपने आप को जानना है। तो जो लॉ ऑफ वन हम बोलते हैं, या फिर यूनिटी बोलते हैं, या फिर इंटेलिजेंट इन्फिनिटी, उसका जो पहला डिस्टॉर्शन जो था ना, वो था फ्री विल। तो सबसे पहले जो आया वो आया फ्री विल। और फिर उन्होंने अपनी इच्छा से एक जगह पे फोकस लगाया, है ना, अपना पूरा अटेंशन केंद्रित किया। और वो जो फोकस लगाया था वो प्यार से लगाया था। और जो निर्माण हुआ, उससे जो क्रिएशन हुआ, वो लोगोस का क्रिएशन हुआ। लोगोस बोल लो, क्रिएटिव प्रिंसिपल बोल लो, या लव बोल लो, ऑल आर द सेम थिंग। सो पहला डिस्टॉर्शन इंटेलिजेंट, सॉरी, फ्री विल से उन्होंने अपनी फोकस लगाना शुरू किया, तब जाके लोगोस का निर्माण हुआ, विच इज द सेकंड डिस्टॉर्शन। लव इज द सेकंड डिस्टॉर्शन ऑफ लॉ ऑफ वन। और फिर लोगोस ने रचना करने के लिए लाइट का इस्तेमाल किया, और लाइट से ही सारी सारी चीजें बनी हुई है। सो लाइट वाज द थर्ड डिस्टॉर्शन। तो सबसे पहली चीज जो बनी थी वो उनकी जो जागरूकता थी, जागरूकता आई, फिर फ्री विल, उसके बाद लव, उसके बाद लाइट। और फिर उसके बाद वो हायरार्किकल चीजें उन्होंने, मतलब जो हायरार्की से उन्होंने जो डेंसिटीज बनानी शुरू की और सारी क्रिएशन की, वो लोगों आर्केटिपिकल ने की। माइंड।
आर्केटिपिकल माइंड वगैरह जैसा आया, फिर उसके बाद आया। इसका मतलब सोनिया जी, जो आप ही ने बोला, मैं समझ गया। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियलिटी थी, इसका मतलब जो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी थी, अब आपने उसमें बोला कि पोटेंशियलिटी नहीं थी, इसका मतलब उसमें पोटेंशियलिटी थी, तभी तो ये आगे मैनिफेस्ट हुआ। मतलब पोटेंशियल सी, पोटेंशियल था, मतलब वो एक हम लॉ ऑफ वन में पोटेंशिएशन को अलग तरीके से देखते हैं। ठीक ओके, है, उनके अंदर जो पोटेंशिएशन जो था ना, वो इनएक्टिव फेज में था, अगर हम बोला जाए तो। वो एक सेशन में है, आई डोंट रिमेम्बर विच सेशन इट इज। कोई भी चीज स्थिर होती है ना, स्थिर, उसमें कोई चार्ज नहीं है या कोई उस पर कोई काम नहीं हुआ है, वर्क नहीं हुआ है, वो स्थिर है। जब उसके ऊपर काम होता है, वर्क होता है, तो फिर स्थिर से वो अस्थिर होने लगती है। फिर उसके अंदर वो चार्ज आता है, फिर वो पोटेंशिएशन में आती है। सो अगर आप जो बोल रहे हो, ये बेसिकली इनएक्टिव मोड में था, फिर वो एक्टिव मोड में आया, ऐसा भी आप उसको देख सकते एक मिनट मैं समराइज करूं जो मैं समझा हूं, 1 मिनट, तो आप हो। क्लियर करना जिससे मुझे समझ आएगा, कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया। तो हम्म, इसमें कॉन्सेप्ट आपने ये समझाया कि एक अनंत रचेता को वन ओरिजिनल थॉट आया, ठीक है, ये जानने की इच्छा हुई वन निर्गुण ब्रह्मा। ओरिजिनल थॉट आया नहीं, वो खुद वन ओरिजिनल थॉट है। एक्यूरेट, यप, ओके, वन ओरिजिनल थॉट उनमें आया, मतलब वो नहीं, ही वो है। है, वो ही वो है, ही ठीक है, है वन ओरिजिनल थॉट, ठीक है। हाँ। तो वो जो वन ओरिजिनल थॉट हुआ, तो उसमें एक अनंत बुद्धिमत्ता लगी, ये जानने की शक्ति कि मैं क्या हो सकता हूँ। वो भी निर्गुण ही था, नहीं मतलब नहीं उस टाइम उसमें भी गुण कोई नहीं थे। नहीं ठीक नहीं है, नहीं, आप वर्ड्स को थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हो। वन ओरिजिनल थॉट, अनंत बुद्धिमानिता, ये सारे सिनोनिमस है। आप क्रिएटर को सोनिया, यहाँ पे डिस्टिंक्शन है। वन ओरिजिनल थॉट बोल दो या इंटेलिजेंट इंफिनिटी बोल दो, वो पहले से ही थी, सोनिया, यहाँ पे उसमें आया डिस्टिंक्शन नहीं है। था। एक मिनट ईशान, ओके, श्योर श्योर। उसमें वो पहले से ही था। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि वो बाद में आया, वो अस्तित्व में था, एग्जिस्टेंस में था, बस उसके अंदर जब अवेयरनेस आई ना, कि मेरे अंदर ये सब है, अवेयरनेस जब आई, जागरूकता जब आई, तब उनके अंदर जो इच्छा निर्माण हुई, उसके बाद ये डिस्टॉर्शन शुरू हुआ है। बाकी ये जो आप बोल रहे हो ना सारे, फिर ये आया, फिर ये आया, आया नहीं कुछ, वो पहले से ही था। हाँ ओके, ईशान तो मतलब बोलो। आप ये कह रहे हैं क्योंकि वो तो होगा तभी वो बाहर निकला, मतलब पोटेंशियलिटी तो थी उनमें, लेकिन वो जानते नहीं थे कि स्थिर थे, है, स्थिर थे। जानते नहीं थे कि है, तो सडनली उन्हें एक ये चीज शुरू हुई, जानने की इच्छा जागृत हो गई, हाँ, स्थिर थी, जानने उस की। क्या बोलते, इनएक्टिव मोड में थी वो। हाँ, इनएक्टिव थी, तो जिसको हम हम्म निर्गुण कह सकते हैं, मतलब अभी तक जानने की कोशिश नहीं की थी, फिर उसने एक हम्म जानने की कोशिश करनी शुरू करी। तो जो हम्म पहला जो अनंत बुद्धिमत्ता बनी, उससे जो हम्म पहला डिस्टॉर्शन उठा वो था फ्री विल, दूसरा हम्म डिस्टॉर्शन लोगोस, जिसको प्रेम आप कह हम्म रहे हैं, और उनसे हम्म, एक लाइट फॉर्म हुई। अब मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हाँ हूँ? ओके, थैंक यू। हाँ हाँ ईशान, व्हाट वर यू सेइंग? Oh, I was saying just about this thing. The same, the theory that you are like referencing, उसके अंदर एक छोटा सा हाँ nuance है. I wanted to add that. हाँ, श्योर So श्योर। it was like that when Ross spoke about this specific thing, like I'm quoting that only. So हाँ they said like, first of all, there was infinity. हम्म And then infinity, when infinity became aware of itself, that हम्म infinity became intelligent infinity. हम्म तो ये हम्म बहुत एक मेजर डिस्टिंक्शन आता है कि जो जो इन्फिनिटी थी तो एक बहुत पैसिव चीज थी वो, मतलब वो इंटेलिजेंट हम्म, नहीं थी। वो एक इन्फिनिट पैसिव थे। पूल ऑफ एनर्जी था वो, टोटल देखा जाए तो हम्म एक पैसिव इन्फिनिट एनर्जी का पूल था। सारा पोटेंशियल हम्म एनर्जी का ग्राउंड हो गया, एक जो क्वांटम फील्ड कहते हैं, जैसे जो हम्म, डिस्पेंसर जो भैया कहते हैं हमारे। एंड हाँ एंड फ्रॉम देयर what happened is that when that infinity become aware of itself, जैसे कि सेकंड डेंसिटी बीइंग्स अवेयर होते हैं, थर्ड डेंसिटी बीइंग्स बनते हैं, उनमें सेल्फ अवेयरनेस आती है। द सेम हैपेंड विद दैट इन्फिनिट पूल ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, जब धरती पे कोई जीव नहीं थे, कोई लाइफ नहीं थी, तो सिर्फ और सिर्फ वो उबलते हुए पानी के फव्वारे थे, वोल्केनोस थे, हम्म एंड सडनली एक हम्म लाइफ आई उन उबलते हुए पानी के फव्वारों में, आउट ऑफ नोवेयर। दैट लाइफ केम आउट ऑफ एग्जिस्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। सिमिलरली, हम्म जो एक लाइफ आई एक अनंतता के अंदर, तो वो यहाँ पे इंफिनिटी के अंदर जब एक लाइफ आई, when that infinity became हम्म aware of itself, that became intelligent infinity. वो यहाँ पे क्रिएटिव हम्म प्रिंसिपल बनता है, वहां पे वो क्रिएटिव प्रिंसिपल बनता है। एंड दैट आई थिंक इज मोर ओरिजिनल थॉट
that creates the one original thought. वो क्रिएटिव प्रिंसिपल देन वन ओरिजिनल थॉट बनाता है. एंड व्हेन दैट वन ओरिजिनल थॉट जब वो बनाता है, इंटेलिजेंट इन्फिनिटी क्योंकि इंटेलिजेंट है, अब नाउ दैट इंटेलिजेंट इन्फिनिटी कैन स्टार्ट टू एक्सपेरिमेंट विद दैट इन्फिनिट एनर्जी. अब तक वो इन्फिनिट एनर्जी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो पैसिव पड़ी थी. बट व्हेन इट बिकेम अवेयर, व्हेन इट बिकेम सेल्फ अवेयर, इट स्टार्टेड टू एक्सपेरिमेंट. एंड व्हेन इट स्टार्टेड टू एक्सपेरिमेंट, इट फॉर्म्ड द फर्स्ट वर्ड ऑफ गॉड, जो कि बाइबल में कहते हैं वन ओरिजिनल थॉट, जो चीज बोलते हैं जिसे कहते हैं लोगोस. एंड जब लोगोस फॉर्म्ड हुए, वो फॉर्म्ड हुए बेस्ड ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लॉ ऑफ फ्री विल. उन्होंने कंटेनराइज कर दिया. वहां पे कंटेनराइज होना स्टार्ट हुआ डिस्टॉर्शंस का, कि वहां पे इन्फिनिटी से मैनीनेस की जो डिस्टॉर्शंस बनना स्टार्ट हुई, वो कंटेनराइज होना स्टार्ट हुआ. फ्री विल सिर्फ और सिर्फ इसी प्रिंसिपल पे चलता, ताकि एक क्रिएटर है अपने आप को कंटेनराइज करके अपने आप को एक्सपीरियंस कर सके. वो वन ओरिजिनल थॉट का जो हिस्सा था ये सब का सब एक्सपेरिमेंट, क्रिएशन, डांस. एंड देन वो जो लोगोस था, लोगोस हैड लव. लव हैज इट्स एनर्जी, बिकॉज लोगोस हैड नथिंग बट लाइक लव, एट इमोशन ऑफ लव, एक एनर्जी ऑफ लव, कि whatever it does with love, क्योंकि it has the love for existence, love for everything that has it in its power. And whatever that was done by the logos was in the power of love. And when it started into within its creation, तो जो भी लोगोस की क्रिएशन थी वो और डिस्टॉर्टेड होगी, क्योंकि लोगोस की क्रिएशन अनडिस्टॉर्टेड थी. इट वाज जस्ट द एनर्जी ऑफ लव. बट व्हेन इट स्टार्टेड टू डिस्टॉर्ट, वहां पे पोलैरिटी बन गई, लव और लाइट, और लाइट और लव की पोलैरिटी बन गई वहां पे. 0 and 1. 0 and 1 तो पोलैरिटी है, देखा जाए तो अल्टीमेट ट्रुथ में तो 0 एंड इन्फिनिटी है. 0 एंड 1 भी नहीं बोलेंगे वहां पे. 0 एंड 1 भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ और 1 एंड सारे जो होल नंबर्स है वो बोलेंगे. होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आएंगे सारे विदाउट 0. 0 एंड इन्फिनिटी इज अल्टीमेट ट्रुथ. Okay. तो मेरा जिम का टाइम हो रहा है. लाइक आई नहीं वुड नहीं लाइक टू ठीक है क्लोज. जी, किसी ठीक के है, कोई बिल्कुल क्लोजिंग ठीक थॉट्स है. रहेंगे तो कोई इसको रख सकता है. नेक्स्ट में करेंगे. एक बात थी जो मैं रखना अच्छा चाहता, अच्छा. लेकिन अब अगले में रखेंगे. ठीक है जी. ऑब्वियसली यार, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस हो रही थी यार, एंड द सेशंस वर लाइक सो इंटेंस. पहले सेशन में Yeah, it was बस इतनी जान है, दो लाइन कह रहा था हाँ. कि मुझे आप लोगों जो ये अभी डिस्कशन हुआ उससे एक चीज आई कि जी जो भारतीय दर्शन के अंदर अब समझ आया, मतलब क्योंकि वो जो इच्छा शक्ति है जिसको कहते हैं कि पोटेंशियलिटी की जो सब कुछ कर सकती थी इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को ये पराशक्ति कहते हैं. और जो सबसे पहली चीज क्रिएट करी उसको, जिसको हम लोगोस कहते हैं, ये ओम को लोगोस मानते हैं. उस साउंड एनर्जी को लोगोस मानते हैं, ओमकार को लोगोस माना जाता है. अभी तो और भी कोरिलेशन निकलेंगे अमन जी. और अभी तो और भी हाँ, और कनेक्शन वो निकलेंगे. लोगोस क्योंकि उसको कहते हैं कि क्योंकि कई धर्म तो ओम को ही ईश्वर मानते हैं, अनंत ओम रचयिता ओम के एक भाव को. वाइब्रेशन है, और देखा जाए तो जो एक लोगोस की हाँ वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन के साथ साथ लोगोस का माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स भी है, एंड उसकी एग्जिस्टेंस भी है प्लेन पे कहीं ना कहीं. एंड फिर वो हाँ, तो काफी सारे हुए. वो तो सिर्फ एक एस्पेक्ट हो गया, जैसे कि हमारे में देवता होते हैं ना, अलग अलग देवताओं का एक अपना एक नेचर होता है, आर्केटाइप होता है, क्वालिटी होती है. तो वैसे ही देयर आर होल डिफरेंट समझ गया. पहले जितना लोगों अंदर से जाओ एक उतना अंदर तरीके से जाओ. प्रकृति बनाई जिसमें सतरह स्तंभ 3 गुण माने गए. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कह रहे हैं कि भाई पहले लोगोस माना, तो ओमकार एक लोगो है. कह सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल, एक फर्स्ट वाइब्रेशन. परसेप्शन के हिसाब से इसको देख सकते हो, लेकिन यही है, उसको बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है डेफिनेटली. क्योंकि उसकी नहीं, ये इसको डिफाइन एक कर जड़ सकते हैं, में लोग बताओ. डिफाइन, ये एक डेफिनेशन है आप कि इसको ना, यही चीज हाँ है, इसको एक पैराडॉक्स की सेंस में ना रिकंसाइल करने के लिए बफर में रखो, कि इट कैन बी हाँ द यार, ट्रूथ एंड इट कैन नॉट बी द ट्रूथ, बट आई कैन स्टार्ट टू एक्सपेरिमेंट विद अंडरस्टैंडिंग कि क्या ट्रूथ हो सकता है. मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स लेके आप जितना रिकंसाइल करोगे, उतना आप पैराडॉक्सेस को यूनिटी में ला पाओगे. वरना आप एक ट्रूथ को जड़ मान लोगे एंड फिर कोई और ट्रूथ आएगा जो कि उसे नेगेट कर देगा, तो फिर आप इन्हीं ट्रूथ में उलझते रह जाओगे. जहां आपने मल्टीपल ट्रूथ को यार इंटीग्रेट एग्जैक्टली. करना स्टार्ट कर दिया, पैराडॉक्सेस को, वहां पर यूनिटी फॉर्म होती है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. किसी और के कोई विचार? प्रियंका जी, नम्रता जी, मिनाल जी, वीरेन जी, निखिल, इकरा जी, आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स इन टुडेस सेशन.
नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे, अभी तो आपको भी लेट हो रहा है ना, और टाइम भी हो गया। जरूर, we can always continue the session, these discussions on our group, and I would love to have conversations upon that group. और किसके लिए है? इसी के लिए तो है। हाँ, ग्रुप में करते हैं डिस्कशन। ऑब्वियसली आपके जो भी कन्वर्सेशन है वहां पे कंटिन्यू करते हैं। Thank you, Ishan. Very nice. Thank you, The way everyone. you are leading the session, the way you're explaining, very good. You're welcome. You're welcome, everyone. थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Bye. Thank you, everyone. Love and light to all. See you. Bye bye. Love and light. Bye.